Hello. Hello. Hi, Swapnil. कैसे हो? Pretty good, sir. What about you? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ. Let's talk in English for today's session. Okay, now that Saurabh is also here, you can talk to Saurabh also in English. Yeah. Hi, Saurabh. How are you? Yeah, hi Ria. How is everything? Yeah, all good. Swapnil wants to talk in English because last session was in English. Oh, great. Yeah. Yeah. It will help us to improve our communication skill. That's why I'm saying. Yeah. Yeah. Hmm. So, Swapnil, can you tell me like what you did in the last 7 days? As of now, I'm working on e-commerce bookstore project. Hmm. Yeah. I will So, show you what are in a the while. language? Yeah. What are the tech stack you have used, and what's Uh, the scope of the project? What new things you gonna implement it? uh, I have used React and Hmm. Node.js in that project, and the purpose is user can purchase or order books from that Okay. website. Yeah, and I have added some functionality like um, range. He can use filtration for Yeah. to get exact book, and I have added cart option, wish list option there. Are you gonna Are you gonna implement the searching also? Sorry. Are you gonna implement searching? Yeah. Also, I also gonna do this. Yeah. Yeah. Okay. So, I will do this by tonight. okay. Ninety So what's percent the is work plan done. for? So what's the plan for like searching feature? How gonna you like? How will you implement it? I will implement like I will make a request to backend, and after that I will get response from server. And once I get server this response from server, I will set that response to state, and after that I will just render that Hmm. map. Yeah, Uh, have you planned to use the debouncing in the search thing, or debouncing. just yeah? Uh, yeah, I used like you Okay. are asking So like when user clicks, user requests for something or to process anything that time mhm. if one request is went to server and if we have not get if we have not got any response till we have to prevent that user like are you talking about like this. mm, No, uh, it is little bit distant. no, yeah, So, it has something Can you else to explain. do. Okay, so debouncing basically is a technique in JavaScript which um, uses, you can say, concept of closures, timers, and uh, using debouncing, you can like prevent the function call uh, up to a delay. So it will just cancel all, like cancel the function calls before if you hit that delay before you hit that delay. I am not sure, but I think I have used this functionality to my project. Like when user click on add to cart button, so once user hits that button, until user get response back from server, I am not allowing to user to click again that button. We can Great. say that uh, I'm preventing user to click again and uh, again and again. Hmm. yeah. Like once user click uh, so what I'm doing, I'm preventing user to click again to that button Hmm. Yeah, if so if your that is response is good. not.
uh, Uh, same. that is good that you are doing, but Saurabh is saying that if you like first you have to think like if you are going to do server side search, let's say you don't show how many books do you show at one time in your page? At one time, how many books you will As show? of now, 16. 16 books. As of now, And I have total 16. I'm Yeah, 16 books, and that's why I'm not using pagination, and I'm showing all the books at a time. okay, so you have total 16 books in your database itself, right? Yes, right. Yeah, so if you are showing all the books that are, if you have already fetched all the books that are present in your database and you are showing it to the home Yeah. screen, then there is no Yes. need to do a server-side search. For example, let's say YouTube has 100 videos, okay, and Yes. let's say on the YouTube server they have only 100 videos, and they can show the 100 Yes. videos on our homepage, okay. Then there is no Yeah. need to search and like go to the server and then get back the response. The data is already there in your homepage. For 16 books, the data is already there. So what you can do Yeah, in we this can do case, that. you can implement just a filter functionality. Like you can Yeah. implement a client side search functionality. But let's say if you have 200 or 300 books, and at a time Hmm. you are showing 20 books, and all the books are not available at the first render. So in that Okay. case, you will have to implement server side search. So you will add one input field, and now there will be one input field and there will be one search button, right? So Right. uh, like now you have to think when that search will happen, user will type and click on the search. In that case the search will happen, or as the user keeps typing, the search will happen and the result will come. Like uh, Okay. how you want to implement. So I got you, sir. I Hmm. got you, sir. Hmm. Like let's say I have total 16 books in my backend. I mean in database, and I am showing all the books at first render. I am Hmm. getting all the books. Okay. Hmm. So what we can do when user types her, so already we have data in front end, so we Hmm. don't need to make Hmm. a request to server to get that item. We Yes. can directly use filter. Yes, sir, Hmm. I understand. Huh. But sir, yeah, Yes. yeah, Yes. we can do that. Yeah, I got you. But I also had let's this. say you have more books. Let's say you have 200 books, and in Okay. the first time you are fetching only 20 books. Okay, Hmm. and in that Yeah. case you want to implement a server side search functionality, because let's say if user wants to search for a book and it is present in your database and you are just searching in the among the 20 books that you fetched for the first time, that will not be good. Yeah. You will want to search and show. So Yeah. as you have seen on YouTube, whenever we start typing, the list Hmm. of suggestions start coming. Okay, Yes, sir. Yes. so you can give that kind of functionality whenever you want to give that kind of functionality. In that case, you will have to use debounce. For example, let's say user is typing Big Magic. Big Magic book is there in your Yes. home. Okay, so let's Yes. say user is typing Big Magic, and while Yes. you're typing the Big Magic, there are total 3 and 5, 8 and 1 space. So total there are 9 characters while typing Big Magic. So Yes. if you want to show the suggestion and Hmm. suggestion when the session comes while we type. So if you want Okay. to fetch the data while you are typing, that Yeah. will be and if you fetch on every keystroke, that will be too Hmm. many requests. Okay, Yes. so that will overload your server. So in that Correct. case, what we do is we Hmm. track the speed of typing, like with which speed user is typing. So let's say if user is Yeah. typing and he slows down a bit, like let's say he stops for half a second or for 300 Yes, sir. milliseconds. At that Okay. time, whenever the user stops, like whenever
typing speed of the user gets slow, at that time we will fire the request. So Okay, this sir. will I'm getting it. so in this case, what will happen? The user will not fire unnecessary 9 requests. Okay, he will fire Yes, only one correct, or sir. two requests while typing the I whole got word. you. So, Yes, sir. so I got you. this Uh, technique is called debouncing, and you can implement it using set timeout and some function technique closer using that you can implement. And there is one very good video by I think Akshay Saini you can watch on YouTube. Debouncing, yes, okay, sir. Akshay Saini by him you can watch or I know, sir, uh, uh, little bit, but I uh, have not used. Like you are saying, when user is typing her, we don't have to make a request to server. When users types is completed, uh, for and user is stopped for some seconds, like uh, milliseconds, we can say. uh, So that time we have to make a request, yes, right, sir? exactly. And Yeah. if we make request every typing time, then it Mm. will make multiple requests. So it will uh, change the Yeah. behavior. Like we can make, we can say like uh, it can It will cause be error or uh, uh, it will be overload for the browser also and for the uh, server also because browser will yeah, have to and track 9 different requests and yes, the server will have to respond to the different 9 requests. So this yes, is why you should implement debouncing in this case. And this is called some I forgot that feature. Uh, yeah. this feature, do you know, sort of like while typing the when the session comes, so there is a name to that feature. Search suggestions, Search session. No, no, that is uh, autocomplete type ahead or type yeah. ahead. Type ahead search. Type ahead search. Yeah. Type ahead search. This functionality is called type ahead. Like while the user is typing, you will go to the server. Let's say user types big. You will go to the server and you will find if any book has the name big. Let's say big magic and big something. There are big tail or there are different kinds of book which has big name in it. So in the Yeah, session you starting will with big. starting with big or even if that title has name has big in its title you will want to show that in the session so that Yeah. is called type ahead search like user is typing half and you are completing that you are just suggesting that automatically that what books are available in your store that's So how what did YouTube you say? Could you repeat? Type ahead. type ahead Only search type ahead. uh, Type type ahead search. Is hmm. it functionality or something like that? This functionality of showing the result while user is typing that is called type ahead search it is there in all major websites be it on YouTube Okay, or sir. any other website What will I have to search on YouTube if I want to know more about it? just search type ahead just open YouTube and search it here type Okay, ahead sir. search in Sir, JavaScript. yeah. And sir, as of now, sir, I have created this project totally myself, so I am not sure that my process is valid or this approach is right or not. So, like, let me show you example. Don't Mhm. laugh at me, sir. Mhm. Okay. Mm, like, so, sir, first of all, I have to check her. Like, when book data is array of objects. Okay, sir, here. Mhm. So, I have to check first that user uh, book dot card means sir card also is a array of object which is in book, like Mhm. books data is array, and once we do filter, then we will get first object here. Okay, sir. And Mhm. inside that first object I have card array. Okay, Mhm. sir. And I am checking that inside that card array I have um, array of object. Okay, sir. And Mhm. inside that object I have one key which is
user user. Hmm. So I'm checking her. Is user data available? If available, then tell me the ID. Okay. Hmm. And once it gets ID, I'm checking that it gives true or false. If it, as you know, sir, we use filter Hmm. to uh, to make filtration. Like if it returns true, then that item will be returned. Okay, sir. Hmm. So I'm checking again once again. Yeah, this line that which array is written here. I'm checking again. Hmm. Is array is array of object is greater than 0? If Hmm. greater than 0 means we have a object, like we have that item. I mean we have something in cart. Hmm. If it is greater than 0, if Hmm. not, then I'm showing this like uh, empty wish list. I mean Hmm. empty cart. This is like, let Hmm. me show you. Like let's say we don't have right now, so I'm Hmm. showing this, Hmm. and I had to use sir too many times. Let's say filter and once again then map. So Ah. is this okay? No, this is not okay. You can optimize it. So in the Okay. first time you are just for the checking its length, right? Just for Yes. checking its length, you are using it. You are doing it. So what you can do is you can store this in a variable above, Okay. like on line number 120. If you put your cursor, no, no, no. Where is your just go in your JavaScript code. This is JSX. Copy. You can JS6. copy. Uh, uh, JS6 starting Here, point. just before the return, you can make one Okay. variable that Okay. filtered something, whatever you are filtering, filtered data, Mm-hmm. and you can store Okay. that in that variable. So every time you don't have to filter, like you don't have to write the whole code again, Okay, sir. and you can use that Okay. variable dot length instead of doing that. Okay, sir. So as of now, sir, books data is coming from like I have created one store using Redux, and Hmm. after that I am getting the value from there. Hmm. Yeah. So I will do this, sir. I Hmm. will change it. Hmm. Okay, sir. Yeah. Apart from So that, as of everything I is know, sir, okay. I know, sir, I'm making mistake, but I know, sir, I'm creating myself. So as you know, sir, we learn by doing mistakes. Whenever you create yourself, that is far better than doing the right thing for in the first time. Whenever Yeah. you do it by yourself and get it working, that is far better than doing and then watching a tutorial and doing it right in the first time. Yes, sir. Slowly and Sir, yeah, I go ahead. have created. I mean, I made it responsive. Please tell me if anything to improve. Hmm. So yeah, you said, sir, last time to make it small in smaller devices. So Um, I made this. yeah, it looks good now. Yeah. This is front page. So is this okay, sir? Front page. Yeah, that is very good actually. Okay, sir. Everything. You And don't have the mobile design, right? And yeah, it's sir you mobile devices. you didn't have the Mobile. mobile design, Figma mobile design, Oh right? yeah, I don't have that. I don't have. So it is very good. You have made it yourself. That is Yeah. very good. And sir, on mobile phone, I'm showing filter option to top, and Hmm. after that, I'm showing all the books Hmm. and his filtration like Hmm. uh, low to high price, high to low, and popularity. Hmm. And even as of now, this is not working. I will do this. I will make it working today, Hmm. and also search functionality. Yeah, it is very Uh, good. yeah. As of now, sir, this is working. Like when I click over here, it Hmm. goes to wish list, and even counts also increase. Let's say like uh, Hmm. let me show you. Like one atom is in wish list, so it's showing one, and when Hmm. I hit
again, so it shows 2. And when I remove sir from her, it decreases once again. Hmm. Hmm. Yeah. Again, sir, when I hit add to cart, it shows count her, Hmm. as you can see, Yeah. 1. Count here. You need to say here. You are saying her. Okay. I will correct you here for English. Yeah. Uh, Yeah. Okay, sir. it will So increase what the I count here. Uh, here? uh, yes. Okay, here. Hmm. Okay, sir. Hmm. So, Yeah. so Apart this from is that, your English is very good actually. You're able to communicate in English very fluently without any problem. You can give thank you, interviews and you will clear. There will be no problem in English. thank you so much, sir. But sir, I'm not perfect in English, but I'm just trying to speak in English. Uh, like sometimes it happens like you don't get the word that you want to speak, right? Yeah, sir. It's Yeah, fine. It will come by just practicing. yeah. Hmm. And like, sir, when user click over here, Hmm. then I'm showing all the information related to that book. Even, sir, like when we click over here, it's Hmm. already wishlist. So it's showing wishlisted, like Yes, blue color. yes. Uh-huh. Like we have whitelisted from here, and Hmm. let's say if we remove from here, again Hmm. it will remove from her also. Hmm. From yeah, Yeah, from there also. yeah, Hmm. from there also. Hmm. And again, this page also the mobile responsive, but I'm not sure it is great. Hmm. Tell me, sir, it is great or which I will need to change. Yeah, it is good actually. Okay, sir. Hmm. Then Scroll little slowly. I can give some suggestions. okay, sir. Okay. Just go here. This here what you can do is reviews and likes you can put in one line. Reviews and Review likes. on Uh, this 4.0 line and mm, what below line yeah, 305 line. yeah, This 305 this and 123. and These two things you can put in one two, line. three. Big magic and then star rating Speed. and then reviews and likes should be side by side. That will be good. Uh, yeah, sir. Okay, but sir, these three things are in single div, and this Uh, is in single div. yeah. This So is what? different div, and Uh, okay, I understand. So what you can do is you can group reviews and likes. You can group reviews okay. and likes in one div, and in desktop Mm-hmm. you can make whatever you want, and in mobile you can put side by side. That will because here the vertical space is bit more like vertically little more white space is there than it should be. So Let me show you, sir. Let me show you by inspecting and give me some suggestion. mm, yeah, so like in the desktop it is coming side by side. You can do it in Yeah. mobile also. And in order to do that, you need to put them in one group. Put Yes, sir. both those things in one div. Yeah. As of now, sir, this is one heading, Hmm. H1, Hmm. and after that, in this div, I have another div, and again in this div, I have two div again for left side and right side. Okay. So for the So left side, the div again, that you have, for the left uh, side, the div that you have right now, open that. yeah, So open it. okay, I Hmm. have three divs. So inside that you have three divs. So what you need to do is you need to put only two divs, and in the Okay, sec in the second div, those two will come. These two divs will come in one parent. one div will come in this parent. I mean, Yeah. I See, didn't get it. see this inside this parent you have three divs right now. Okay. Yeah, correct. So what I'm suggesting is the second div and the third div. You can cut that and put it in one group of div. Okay. Like second and third you will put in one div together.
Second review section and review section, मतलब in हाँ both these हाँ ways. review container. You can Yes. create one div with the class Mhm. review container, Okay. and Okay. you can put both things in that review Mhm. container div, and review container div will Okay. be below the star rating. So Okay. if you do Great. that in mobile, you can control it. And so Hmm. can we make this star rating due to left to I mean right to this big magic? Yes, you will have to change some HTML in that case. Yeah, You I need will to change just it. hmm. Then you didn't. If you remove the star rating from here, you don't need to change the this is structure, the structure that I'm saying. You can work with the existing one. Like if you remove the star rating, then you have only two divs left in the book info, right? Okay, So sir. Got it. you can do it. Just just given the selection, you will do it. Okay, sir. Okay. Uh, ठीक है. और अमित. हाँ सर ठीक है. ठीक है, अमित से पूछते हैं. अमित, तुम बताओ क्या हाल चाल है. I think he's not here. हाँ, मैं भी. सौरभ, तुम बताओ क्या तुमने पढ़ा लिखा, क्या सीखा. Um, this week I have I'm just working on the creating a README file for all basics to medium level JavaScript interview questions. So I was ओके. doing that, and this week I have a lot of work pressure, so I didn't learn much. And I'm working in a uh, uh, product with a YouTuber, and दैट्स I नाइस. can't share the details until yet. So yeah, कैन and यू I टेल have one विथ thing to which which ask. which यूट्यूबर आर यू वर्किंग विथ. He's Vedant Jain. He's currently working as a SD2 at Disney Plus Hotstar. ओके. वेदांत चैन, वन सेकंड. Saurabh bhai, I wanted to ask you one question. Yeah, How did you set that GIF profile image, profile picture? Your profile is animating. yeah. Hmm. I did it intentionally so everyone I can get the attention of most of the people. Uh, so Yeah, I'm Google asking how did you allows set? us, yeah. So Google allows us to set you can say GIF in our Hmm. Google account. So basically, you have to do is just create an animation, basic animation, and convert it to a GIF, and just go to your Google account settings and just change your profile picture to this GIF. But this GIF is not supported everywhere, so you can just you can say you can see currently my profile is just blank, blank blue kind of Yeah, thing. blank look sometimes when we look on mobile phone, it looks blank. Yeah. So Right now that's also the here it is looking blank. Yeah. yeah. In the screen, I will tell. One second. If I share So my mobile screen. on mobile phone it doesn't show, sir. Yeah. Okay. In the laptop also, if you see here in this case, it is blank. But if you see here, it is animating. See, if you see here, can you see here? So in the laptop screen itself, at one place it is not animating, it is blank, and in the other place it is animating. Yeah, Yeah. it's a issue of Google actually. Hmm. And yeah, I've seen this video on some Instagram or YouTube. So he said you can if you do this thing when you cold email the HRs, they will just sometimes they ignore. But if they see something is animating in the mail, so Hmm. they might open your mail and then see. Hmm. That's the reason actually. Hmm. Okay.
I So hope this makes sense. yeah, did it work? Did you do any cold email after doing this? I Does don't know this about the HR, but people ask like, Yeah, how that do you? for the first time when I saw, I wanted to ask, but I was talking about something else and I forgot because that Yeah, looks something new. So, is it him with whom you are working, or pardon? like I'm sharing my screen? Can you see it? Yeah, I can. So, are you talking about this YouTuber or someone else? Like, I think your screen is stuck, or I'm what if? seeing the YouTube page. Okay, okay. What do you see, Swapnil? I am seeing Vedant Jain YouTube channel Okay, on screen. okay, Yeah. okay. I will stop and I will start sharing. Wait. I think this issue is from my side. Just let me reconnect with the new connection. Okay, just a Oh, second. okay, okay. By the way, it was very, very impressive, sir. What was Profile interest? picture animation. Uh, Profile that picture I'm seeing. that is Yeah, good. yeah, Can yeah. you? Yep, And it's getting attention. Hmm, yes. Can you see the screen now, Saurabh? yep, yeah, I can see. Oh, No, this one is not like. Just search JS Cafe. JS okay. Cafe. JS Cafe. I think. Yeah, this one. I Yeah, think. One second. Let me search it on my different account. you might I, know him. I think I might he's. have Uh, subscribed. No, I am not subscribed, but yeah, it's good. I will check. I think I have watched his video because face looks familiar. 5 to 6 people. So I will watch it later. Okay, so you are working full time or part time for him? no, just for interest. Oh, He's just mentoring me. I'm just working for him just for free, just okay, for the knowledge. okay, okay. Yeah, that's good. And Yeah, I have one thing to ask. Like recently, I was just surfing around the web and I found something that I want to like clone, but I didn't get any intuition to solve that. If you just search on the Google, just search like mtechzilla.com. M Tech, M- Yeah, mtechzilla zilla uh, .com. something is wrong. LLA. Okay, Yeah. yeah, Yeah. this one. I'm not promoting them actually. I'm just okay. I think just go to their teams or about. I think yeah. So this map actually, I'm just wondering like how they implemented this map. I was inspecting the this component and I found that they have used SVG kind of thing. But I was wondering like how I can implement this in React or using JavaScript or CSS. So this has like they have not developed it from scratch. They might have used some library for this. We can we need to search like they have used some library because we can do this with simple JavaScript also. Hmm. Yeah, we need to think like I need to think how can we do it. Uh, we can do some hacks and make it using JavaScript also, but that Yeah, will require actually, a lot of code. Uh,
it's kind of like attention catching, you can say, Uh, uh, interesting thing. uh, so this has been done using some library. I don't know the library which they are using, but I'm sure that they'll be using some library. Could you send the URL in chat box, sir? Okay. Yeah, and one more thing, for the other like members of this meet. These people, MTech Zilla people are hiring for junior software engineer and senior software engineers. So you can like, if you are searching for the job, you can just ping them. Hmm. Yeah, that's good. It's a SVG map, and I don't know how they are just, when I just hover over these dots and it appears kind of strange. We can do it. We need to spend some time, and it is time consuming thing. We can do it with JavaScript only, and we can do it if we find the library. That will be easy. They might using libraries, sir, Yeah. because it's very time consuming Hmm. and it will take too much code. Hmm. Yes. Sir, Try it, Saurabh. uh, First, forget about the map of India. Just make one square box, okay, Hmm. and put some Yeah. dots. And whenever someone hovers on the dot, show some images. That will be a good exercise. Yeah, we can do these. Yeah, like you can, we can use React for this, just states kind of thing. Hmm. Like we can add some on mouse over event, and on just when we get the on mouse over event on the dot. So dot will be a component, we can say, Hmm. and then we can toggle states. Hmm. Yes. So for now, like don't think about the map of India and implement that. Then we can think about how to draw this kind of shape. Okay, it is good. Like we can clone this. Good website. I only found this thing interesting in their website. Everything is like basic. We can Um, anyone. Everything is simple. Simple yet beautiful. Everything is beautiful. hello, sir. हाँ हाँ बता सकते Sometimes why do we need to use window dot scroll to? Last time I asked you, I had to use window dot scroll to go to top. because whenever you use a React router, Hmm. so if you have already scrolled some portion of the page, Yeah. then if you go to the different page, Hmm. whenever we go to the different page, our page doesn't refresh. You know. Okay. Yeah, correct, sir. So if you have already scrolled, that scroll Hmm. will be maintained by the browser. Yeah. So that's why you need to do to Scroll window to dot window scroll scroll. 00. Yeah. So So, sir, the reason behind it because we are using router, right? yes, React router, and that is that is how it is supposed to be. Like if like in the router, I believe in the router there should be by default some code written which scrolls it to the top in the router Mhm. itself, but it is not that, so you can do it by yourself. Yeah. So, are you sure it's causing error because of router? Causing error. It's not error, but functionality we can say.
Okay, that is because of we are going. So what we think that right now, if we go from one page to another page, that Yeah. page should start from the beginning, right? It should Yes. not start. Let's say if I have scrolled the first page to the Mm. bottom, and if I go to the second page and that page will open at the bottom. That's not how we are used to using websites. Whenever we go to a new page, it will start from the top. So by default, whenever we go to any other page in normal applications which are not using React or something, the page will be refreshed Yeah. and it will open from the top. But Yes. in React, when we use React router, that Mm-hmm. React router does not refresh the page. The page that is coming, that is not an actual new page. That is the same page. That is why it is called single page application. Yes. So that is Sir, the single page. yeah. So, sir, does this happen in next application too? Because in next application we don't use routing. I mean, router package. Uh, we need to check because routing is handled by Next.js itself. So Yeah. you need to create on Next.js application and you need to check. I don't know. Have you faced any problem like this in next application? Because I have not used uh, Uh, next application. I have not created, so I don't know about it. uh, I have not. I have also not created Next application from scratch. I'm working in an existing Next.js application. So Acha. I didn't notice that. Maybe that is handled, or you can just create a Next.js application. Have Yeah. you studied Next.js yet or not? Uh, no, sir, I have not studied, but I know little bit about it, Hmm. like how it works, like routing and some Hmm. things. Okay, whenever you learn about it, you can create a simple web page, like simple Next.js application, and put Yeah. two pages, and you can check if it works or not. Yeah. And again, sir, I have one question. So, like, as I show, let me show you my screen again. Okay. Yeah. Is someone waiting for any question? Yes, To ask Saurav you? has raised the hand. I think Saurav, if you want, Uh, uh, yeah, I You can have ask. something to ask, but you can go ahead, please. Yeah, I'll ask later. Okay. okay, Swapnil, you can ask So, first. Hmm. sir, like, this is a card, book card. So, as you said, sir, last time, I will have to do this by using relative position to image and absolute position to this div, sir. Right? Um, So, yes, sir, yes. when we click over here, so what Hmm. so it goes to white wish listed. Hmm. Okay, so it Hmm. works perfectly because I have used event dot prevent default. So, sir, Hmm. when I don't use event dot prevent default, so what Yeah. happens? So it works You like, you have clicked on the card, right? yeah. And you have not used event.prevent default. You have used event.stop propagation. No, sir, not propagation. I have used event dot prevent default because, sir, if I don't use, so what happens? Like when I use image, it opens this page. Okay, so it Uh, working like that because yeah, it is. show me your code where you have used event.prevent default. Okay, sir. Let me show you. Hmm. See, sir. This is image, Hmm. and inside Hmm. this is book inner card, and after that this is image, Yes, yes. and this is Event.prevent button. default, I can see that on line number 342. If you change it to If event.stop propagation, okay, this is wishlist button, right? yeah. Stop propagation. Just call this function. No, sir, it's not working actually. Actually, it's whitelisted, but it's going to wishlisted. But next page also coming.
let's say Oh, like if I click ah, over here, next page is coming, and when I ah. use this, next page is not coming. And See, you use if I event.prevent default, it is not coming, right? yeah, it is not coming. Then it's stopping from doing. It's preventing to you going that to that page. It's preventing user Uh, even to prevent default. Actually, okay. I did this myself, sir. I even don't know how it's working, but I used it. Actually, in this case, event.stop propagation should work. One Yeah, but second. I don't know why it's not working. Uh, so this whole thing, show me where you have put your button in the link tag. Where you have put Button, sir. this button, yes. Show me the JSX code where you have put. Uh, okay. So, sir, this is image. This is image, and after that, this is button. So, Okay, image is relative, and and it is present inside that link, right? Inside the link tag. yeah, it's present. Image and button too. Ah, okay. Now Yeah, come to the browser once and inspect one card. Inspect yeah, one okay, card. okay, sir. So, like when we inspect this card, see, Okay, sir, so all it the is cards are like anchor tag, right? yeah, anchor tag means it's showing anchor tag because when we check on Chrome, it shows anchor tag, but it's link tag, Hmm. as you know, sir. So, Hmm. like when we open, then Hmm. we have book card, and after that, inside this book inner card, okay, sir, and inside that we have image and this button. Okay. So, You have so image and the because of button. yeah, image and button. So if Hmm. we don't use that, then directly it goes to next page. But Okay. also it's going to wishlisted, Yes, yes. but Yes, also going to it is next page. happening both. Like it looks like you have clicked on the Yeah, icon and the card both at the same time. yeah, sir. It's working for both. So that is the default behavior. If you click on any child element, it is Hmm. supposed that you have clicked on the parent element also. That's why it is Yes. happening. But Hmm. that can be prevented using prevent default event dot prevent no event dot stop propagation. It should be Yes. prevented, but in this case, you are using event dot prevent default, and that is working. Event dot stop propagation is not working. That we need to check why it is happening. Yes, sir. Try So, using like type attribute in the button. Just like add a type equals to button. uh, Uh, just add type equals button in the button tag. Add I your didn't. I uh, didn't did. okay. Just above the class name, you need to give one more attribute. One more Okay. attribute. Type is equal to button. Hmm. Type equal to I'm button. not sure about this, but I Is this okay? think yeah. Just try. Just try. And that error is coming. You can just put something there. Just put a string. Which It I will need to stop. uncomment. You Which I need to just uncomment put right a now. console log. Just put a console Yeah. log. Just put a console Okay. log of event. Event dot target. Just This is zero. do that. Event dot target. Okay. I Even want the to check. card. I want to check Yeah. what is Fine. the event dot target. What is the event dot target? Uh, event dot target. So let From me which check, sir. line number? Just check line number Uh, 342. 342. Yes, 342. So 342. Okay, Yeah, it here it is is. 342. Okay, It's it is giving S. SVG. So how you are using SVG here? Like you are using image tag, right? SVG. You are using image tag or SVG. How?
not image tab. Uh, for this, actually, mm, this is if I hurt button. I mean, this Okay, is like okay, okay, component, okay. React Okay, icons. I got it. So this heart icon that is there, that is an Mm. SVG. Yeah, this is button. Mm-hmm. Yeah, this is button, totally button. And this Mm-hmm. is clocks. Like I'm checking this that you got it, sir. I know Mm-hmm. So why I'm what is doing this happening class. uh, in this case? Why event dot stop propagation is not working? Because mm, this should work actually. Just do again uncomment event dot stop Uh, propagation. That should work, yeah, yeah. okay, sir. Mm, Event dot stop propagation. Yeah, let's see. When I click over here, mm. yeah, it's not working. It's redirect to this URL, means next Okay, page. okay, come back, show your code once. How you have written. Yeah, okay, sir. Show me the Okay, sir. code. Even dot stop propagation. Okay, one Yeah. second. And what is this user data? Okay, if user data is there, then do User something with. data. Hmm. Okay, comment Uh, out this line also. Comment out this user data line, line number 46 and everything. Uh, 46. 346. 3, Uh, hmm. 346. Ah, okay. All the three lines. Yes, comment out this. Okay. Again, go back Okay. and click again. Okay, sir. Let me refresh again. Hmm. So when I hit, yeah, it's redirection to this next page. The next Come back page. to your code again. And Hmm. so here we are adding one event listener on button. And Yes, on click event. hmm, whenever button is clicked, we are Hmm. doing event dot stop propagation. Yes. Okay. Can you add event listener on link? Just check. Just check. Can you add event listener on link tag? Link tag over here. Hmm. Yes, yes. Which event Just listener? on click. On click. Just check if it is allowed or Okay. not. On click. Yeah, it's on Okay. click. Okay. So, Just console log something. Just pass a callback okay. function and console log. No, no, no. First, you need to Okay, pass a Is it function. okay or when callback? I think I got it. Actually, when we are doing that event dot stop propagation, we are not stopping any like event or something. When we click on the link, it's not an event, I think. Am I right? Uh, I think uh, one because second. we stop the propagation of event on the event handlers. Just click on the child, then it stops the propagation to the parent. No, this should. You need to pass a callback function. On click, you cannot do like this. Okay, fine. Sir. On click, how you attach I an think on we click, can and do this, sir. that will not do I anything. think You can either do console.log. You need to remove that call. Do a callback function. uh, This will. Yeah. yeah, okay. Sir, why do we need to use her callback function? Go to the basics. I don't know, You. sir. Uh, I thought it will work without callback. yeah, you can try. It will not work. Yeah, I will You try, need sir. to pass a Definitely. function. Any kind of function you can pass. That function will be called. Now Yeah, now click it again mm, and let, let's see if that link. yeah, I clicked over there Why it is and let me loading. check line number.
I don't know, sir, why it's loading 324. 324. 324. We didn't get any console log. Go back and click again 324. Yeah, let me refresh once again. I don't know why it's not worked. and close this setting in the console. The setting you have kept it on. Close this Uh, setting. This no, not that one. There is one I more button. Same below. Just below really. that. Just below that setting Uh, button. Three hidden. You can okay. see. Yeah. Okay. Yeah. Now it's okay. Okay, sir. So Clear the console first. Clear the console. okay, I cleared. Hmm. And when I hit over here, It is refreshing the page. So yeah, it's the refreshing. on click that you have passed, just remove it. Just remove it. Just cut it and put it on the div. On the Okay. div. Just, Huh. uh, which div? Bill? This div? This one. Yes. Okay. Do I need to refresh it once again? Yeah, refresh it. Refresh. Go back and refresh. Hmm. Yes, sir. Mm, mm. Yeah, it's refreshing. Okay. Still it is refreshing. Yeah, it's refreshing. Okay. Come back. That Done. event dot prevent default. Remove Yeah, that. I think, sir, it's refreshing because we have anchor tag and we are clicking over here, over this div, but by default it's clicking to this link too. I mean, Yes. this is anchor tag ना, तो हाँ यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इधर भी क्लिक ही हो रहा है वैसे, हाँ तो क्योंकि उसके अंदर div है ना. हम्म, हम लोग डिप पे क्लिक नहीं कर रहे हैं. हम लोग एक हाँ लिसनर लगा रहे हैं कि अगर डिप पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलाना. वो जो ऑन क्लिक है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो क्लिक होगा. ये होता है इसका हाँ. मतलब कि अगर क्लिक होगा तो ये फंक्शन रन होगा. हम्म, ये होता है. अभी हाँ. एक काम करो. इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन हटाओ. Event dot stop propagation. कमेंट कर दो. हटा दो. ठीक है. अभी एक बार चल के देखना कुछ होता है. टाइप बटन किया है. एक मिनट अभी एक बार चल चल के देखो होता है कुछ कि नहीं. रहने दो इसको ऐसे ठीक ही. है सर. रिफ्रेश. हाँ. एक मिनट सर, मेरे को बैक जाना पड़ेगा. हम्म, Sir, when I open dev2, sir, it takes too little bit time to refresh the page. I don't know why. maybe laptop is When I little click, bit slow. no, sir, my laptop is not slow. Maybe internet connection is slow. Okay. Laptop is not slow. Laptop is okay. Okay. Yes, sir. So did it refresh this time? No. Uh, I didn't see this, sir. If I think it did not I, refresh. let me check once again. Hmm. So when I click over here, yeah, it didn't refresh. Okay, and just check if that console log first is coming or not. It should be Console coming. log to 342 line. Are talking about this console? No, the above one. Three Uh, 325. 325. Okay, sir. Okay. 325. So 325. In the filter, you can type 325. There is filter field Okay, sir. 325. 320. Yeah. Yeah, we have first Okay. It is coming two times. Okay, it's two fine. times. So if we do event dot prevent default, then it is refreshing.
We need to Yeah, understand this link tag properly, how it works, I think. yeah, sir. Hmm. But as of now, is it okay to use event dot prevent default because it's working perfectly as we wanted? Yeah, you can use that. You can use that. And Okay, sir. send this code to me also. I will check why it is happening. Uh, Hmm. okay, sir. I have two codes, sir. So do I need to send whole code with .env file? Or Or, if you deploy, then you can send. You're about to finish, how sir, long it will take? it will take like maximum 2 to 3 days. Okay, even in that case, I will need the code only, not the deployed version. Send me, just send me on GitHub or somewhere. Okay, sir. I send you in a while. Uh, and just make a zip and send. Okay, sir. Okay, sir. Hmm. Okay, Saurav, you wanted to ask some question. Yeah. Did you Um, understand anything why this is happening? I think that when we are using that event dot stop propagation, so it event dot stop propagation stops the event, not the anchor tag, like working of the anchor tag. So anchor tag, like when we click on that button, the anchor tag is also like get triggered. So it just redirects us. So when he is using like event dot prevent default, so I think this might like stopping it like to redirect or something. I will like we will have to understand that link tag and how it is working. Yeah. Hmm. Yeah, you wanted to ask some question. Okay. So do you have like have you worked on or you have any knowledge about like uh, the storage of browsers, like that local storage, session storage, and the index DB and other thing, like there are certain I know only other. local storage, index DB and session storage. Session storage, I have no, I have not worked with that. I need to still learn about that. Actually, I was like I was heard like about the that index DB Hmm. and other storage, Hmm. but I haven't like know what it actually does. Like, what's the use case of using index DB, not the local storage or session storage, or not using the cookies? Hmm. Yeah, I think it has some different purpose. I don't know exactly. I will also need to. I will also learn. Maybe when I learn it in future, I will make a video. Yeah, sure. I will be just waiting for it. And like, can you like share any resources for the learning dev tools? Actually, Okay. I am looking for learning like dev tools thing. I know few things like application, the lighthouse, and other than the console, memory, network, only these things. But there are many of the things. So I want to So, learn those, explore those. so if you already know those things, those are enough for developing application. But still, there are more tools you need to explore. Yeah. So you will not find any video course as such Hmm. on other topics. Okay, Hmm. you may find for source tab, network tab, like that. And Hmm. for others, you will not find anything. You'll have to go to the documentation of DevTools. So from there, you can learn about DevTools. From any video. I did not learn anything from any video course or even Okay. documentation itself. I've just opened the DevTools, Hmm. and for example, right now there are still a lot of things that I don't know in DevTools. For example, let me share my screen, and let's say we have opened this website, and I know almost everything about Elements tab. There may be some things that I might not know.
about console tab, about source, network. In performance, I don't know much what, like Mm. I don't know much. I need to learn. In memory, I know a little bit, like I know some variables we can search, how the memory is. And in application, only local storage, lot of things are there. Only local storage I know. And if you want to like learn index DB, so you see it here and just search it on YouTube, on Google, and try to read the documentation why index DB is used. For index DB, you might find the video courses also, because that is popular. And I also need to learn these things. Service workers are there. You need to learn what is service worker. And in the security, I don't know anything. I've never opened. So what you can do is you see, let's say you have open security overview. Okay. And security overview in dev tools. So you will like security issues, common developers. Yeah. So here in the docs, you will get the whole detail, like why this security overview is there. Okay. So you can read everything about it. So one by one, you can read about everything. Why recorder is there in the DevTools, what you can do with it. So from the DevTools, you can read everything. Or you can take the help of ChatGPT. Yeah. Just give me important tips from this. It will tell what are the like important things to know, because there are a lot of things. So I have Mm. also learned in the same way. Like if I don't know anything, I will search on Google. I will find. I will read it, and I will know. And I will try to explore myself. If something is simple, I will understand without the help of Google. But if something is very mysterious, I don't know that, then I will have to read the documentation. That's how you will read. Like, not any like there is no course which will teach everything. Okay. And recently, like I was also doing the same thing. So I found one like service or kind of we can say I found that we can view our website in 3D. Yeah, and we can view the Z indexes too. And it was like quite interesting thing. I was viewing the website in 3D, and it is there in the like Edge Dev Tools. I don't know about it. It is in Edge DevTools. Yeah, I think you know about it, or you might have like explored it. No, I have not seen that. Uh, if it is in Edge DevTools, it should be in Chrome DevTools also, because both are same. Yeah, I was exploring the Chrome, but Chrome does not have that all those features, or I think I don't know like how to open those. In the Edge, you can just open any website and just go to the inspect, and you can find at the last Can of you that. share your screen? Are you there? Okay, can you share it? Actually, I've joined from mobile. Okay, Swapnil, share your screen and open Edge browser. We will see how what he's saying. Join with laptop, because I have Mac and I don't have Edge. I don't know if Edge So is available on Mac. Let me search. Swapnil, are you there on Mac? I think he's away right Uh, now. Hello, sir. Are you talking to me? Yeah, yes. Can you share your screen and open Edge browser? he left. He left. I I think think he he's might join from. uh, downloading Edge browser. Let's see. It is taking a long time.
Yeah, and that tab helps me like debugging the Z indexes, so I can like view the DOM element, the Z indexes. It was quite helpful for just debugging. Actually, uh, okay, okay, that is good. Actually, we need to see. Swapnil, did you join with laptop or mobile? Hello. Just give me 2 minutes. I'll join from that desktop. ओके ओके। और अमित तुम बताओ, सुन रहे हो अभी? सर क्या हाल? क्या है? आइए पर क्या क्या कहा तुमने? आवाज कट गई। आइए लिटिल क्वेश्चन अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन है? अच्छा, लेकिन तुम्हारी आवाज कट रही है। आवाज सही करो। यही वाला है गूगल? ये तो पुराने वाले संडे का है। कहाँ है क्वेश्चन? मतलब तुम सर ऐसे ही पूछो। उसी अच्छा, इसी में है। ठीक है, बताओ क्या है इसमें। अब इसमें जो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसमें ये इमेज पर ये इमेज के ऊपर है उसको नहीं रहे समझ नहीं आ रहा है, इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट है उसको क्या करना है? हैं हाँ इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट है इसका HTML स्ट्रक्चर है उसका हम्म। थोड़ा HTML स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है हाँ हाँ, जैसे क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हमने पैडिंग टॉप 100 इस 300 दिया है। ये ठीक है। देखो, ये HTML स्ट्रक्चर सही है, तुमने CSS सही से नहीं लिखा है। एक मिनट। देखो ये है ना, तो सर ये तुम सर हीरो इसका सेक्शन। हाँ बोलो, इसका क्या? इसको जब मोबाइल व्यू में लाने पर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है उसको कैसे मैनेज करो इसका ओरिजिनल वेबसाइट में सर इसका ओरिजिनल वेबसाइट गूगल एडसेंस हाँ, ये नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो तुम अभी ज्यादा टेंशन मत लो। तुम उस चीज को डिस्प्ले नन कर दो। ठीक है, ये जो तुम्हारा ऊपर वाला टेक्स्ट है उसको एकदम से डिस्प्ले नन कर दो, और एक नीचे डिव रख के वहां पे नीचे अलग से कर दो। ठीक है, दो दो अलग अलग HTML लिख सकते हो। और सर नहीं, नहीं तो अगर करना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है तुम्हें। देखो, ये ओरिजिनली इसको कहाँ पे आना है? इसको आना है इस इमेज के नीचे। ठीक है, इसको इमेज के नीचे नीचे। लाना हाँ, इमेज है सर पूरे उस इमेज के नीचे लेके आना है। तो ठीक है, यहाँ पे तुमने पैडिंग, पहली बात तो यहाँ पे तुमने पैडिंग को यूज किया है, वो गड़बड़ है। ठीक है, तो इसको रख लो बाहर यहाँ पे। यहाँ पे रखे तो ये पूरा व्हाइट टेक्स्ट था, तो शायद गायब हो गया ये सारा। एक मिनट, इसके अंदर जाते हैं। कलर हटा दो, इसका भी कलर हटा दो। इसका काफी ठीक है, और इस पे पैडिंग जो दिया है तुमने, ये भी हटा दो। तो मोबाइल में कुछ ऐसा चाहिए, डेस्कटॉप में ऐसा चाहिए कि ऊपर आ जाए ये। तो ये तुम्हें
इन दोनों चीजों को एक डिव में रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो इसको साइड बाय साइड रखो इन दोनों को, और फिर इन दोनों को एक डिव में रखो। ऐसे, एक मिनट, ये हीरो सेक्शन है। हम्म, उसमें स्केलर डिले को क्या? एल्गोरिथम इमेज अलग, इसको दोनों को अलग रखकर सेपरेट किया जा सकता है। हाँ, तो वही, हीरो इन दोनों को सेक्शन के पहले तो अंदर साइड एक बाय अलग साइड डिव रखो। लेकर हाँ, फिर एक एक दूसरा डिव बनाओ। और उसके ऊपर एक हाँ, जैसे इसका नाम दे दो, एक पेरेंट डिव बना लो, और उसका नाम दे दो हीरो सेक्शन कंटेनर। ठीक है, और इस चीज को इसके अंदर ही डाल दो, और फिर इसके अंदर, एक मिनट, क्या क्या आ गया, हीरो सेक्शन कंटेनर के अंदर इसको कट कर लो, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये उसके अंदर चला जाएगा। फिर एक डिव यहाँ पे और बनानी है, एडिट एज HTML। ये देखो, ये हो गया। अभी यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें लगाना है इसके ऊपर, पहले तो एक एक हीरो सेक्शन कंटेनर बना लिया, उसके अंदर हीरो सेक्शन और हीरो दूसरे हेडिंग पैराग्राफ कंटेनर, इन दोनों को डाल दिया। और फिर इसके ऊपर तुम डालो पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, और पोजीशन एब्सोल्यूट करने से ही ये ये गायब हो गया। कहाँ गया ये, एक मिनट, यही है पूरा। बॉडी कहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया है। एक मिनट, फिर से करते हैं। यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट, और पैडिंग तुमने यहाँ पे टॉप में दिया है, पैडिंग को हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा। और इसको तुम्हें सेंटर करना होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तुम दे दो टॉप 50% और लेफ्ट 50%। ये हो गया। और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, -50% यहाँ पे हो जाएगा, -50%। और ये भी हो जाएगा -50%। ये करने से एकदम से सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और ये सेंटर में रहेगा। अगर तुम्हें इसकी विड्थ विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ तुम बढ़ा के दे सकते हो, विड्थ 100%। ठीक है, और मैक्स विड्थ अगर तुम्हें देना है मान लो 500 पिक्सल या 600 पिक्सल,
कुछ भी, तो उतना दे सकते हो। ठीक है, तो ये सेंटर में रहेगा। ये देखो, दो चीज करना है। तुम ये वीडियो बाद में रिकॉर्डिंग में जब देखना तो अच्छे से कर पाओगे। पहले जो तुम्हारा जो भी स्ट्रक्चर था उसको थोड़ा सा चेंज करना है। एक हीरो सेक्शन कंटेनर बनाना है, उसके अंदर तुम्हें हीरो सेक्शन और हीरो ये हेडिंग पैराग्राफ कंटेनर डालना है। और हेडिंग पैराग्राफ कंटेनर के अंदर डेस्कटॉप के लिए इतना स्टाइल लिखना है तुम्हें। तो डेस्कटॉप में ये ऊपर आ जाएगा और इसके बीचों बीच में रहेगा। ठीक है, और मोबाइल में जैसे ही जाओगे तुम्हें क्या करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट हटाना है। और पहली बात तो जो तुमने कलर इसके अंदर अभी, एक मिनट अभी हटाते नहीं है, इसके अंदर जो तुमने कलर यहाँ पे हर एक को अलग अलग से कलर दिया है ना, ये अलग अलग से कलर मत दो, यस इन सर। दोनों को अलग अलग कलर मत दो। यहाँ पेरेंट पे दे दो कलर। ठीक है, यहाँ पे कलर दे दो व्हाइट। ये दे दिया तो एक ही जगह से दोनों जगह पे वो इनहेरिट हो गया ऑटोमेटिक। फिर मोबाइल में क्या करना है, जब भी मोबाइल में जाओगे तो पहली बात पोजीशन एब्सोल्यूट हटाना है। मतलब पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट, ट्रांसफॉर्म, ये भी हटा देना और कलर व्हाइट भी हटा देना है। बस ये नीचे आ गया। देखो, मीडिया क्वेरी लगा के इन तीनों चीजों को हटा दोगे तो ये नीचे आ जाएगा। और विड्थ भी चाहो तो हटा दो, ये पूरा जितना यहाँ पे लिखा है सब कुछ हटा दो। और मोबाइल में एक काम कर लेना, मार्जिन टॉप दे देना। मार्जिन टॉप 32 पिक्सल, थोड़ा सा ये हो जाएगा। और फॉन्ट साइज छोटा कर लेना। ठीक है ना? सर एक और क्या? समझ नहीं। हेलो अमित, तुम्हारी आवाज कट रही है। चलो अभी सौरभ कुछ आवाज दिखा। कट रहा है सर। हाँ, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, देखते हैं। हेलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। सर इसका बोलो कुछ बोलो, भी नहीं आ रहा है। तुम बोल दो, बस जो तुम बोलना चाहते हो हाँ, वो बोलो, कुछ भी मत बोलो तुम। वही रिपीट करते रहो, आ जाएगा कहीं ना कहीं। ओके वो- ओके। हो रहा है इसका सर। ओरिजिनल वेबसाइट खोलिए ना, उसमें एक डिजाइन है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट में कहाँ, उसको कौन नहीं, सी? हाँ हाँ, ये चीज? नीचे वाले, हाँ ये सर। हाँ, क्या चीज नहीं समझ आ रहा है ये इसमें से? कैसे हो रहा है? ये ये वाला? तो उसका सर्कल घूमता है। हाँ ये वाला, हाँ। अच्छा, ये ऊपर इसमें इनपुट फील्ड लिया गया है। यस सर, यस सर। अच्छा, इसमें इनपुट इनपुट फील्ड लिया गया है या क्या? देखो, इस तरह इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, और ये ऊपर कैसे घूम रहा हम्म, है, ये सब कुछ मैंने बनवाया है। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक ड्रॉप डाउन का वीडियो है, ड्रॉप डाउन। ठीक है, वो तो है सर। हाँ, तो वो सीएसएस से बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें जैसे ये जो यहाँ पे है वो एक सेलेक्ट मेन्यू है। ठीक है, ये सेलेक्ट मतलब कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे तो वो सिलेक्टेड यहाँ पे दिखेगा। जबकि जो मैंने बनवाया है वो कोई सेलेक्ट मेन्यू नहीं है, वो बस केवल ड्रॉप डाउन मेन्यू है। उसके अंदर कुछ लिस्ट दिखेगा जिस पे हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये घूमेगा ऊपर की तरफ, ये घूम जाएगा जब भी ओपन होगा तो। ऐसा है। तो अगर घूमने वाला तुम्हें सीखना है कि कैसे घूम जा रहा है तो उसको देख लो। और कैसे सेलेक्ट होगा उसके लिए तुम सिंपली अगर चाहो तो सेलेक्ट मेन्यू यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक जो ओके सेलेक्ट सेलेक्ट ऑप्शन ओके होता है सर। ना, ठीक है, उसको यूज कर लो। डिजाइन थोड़ा अलग रहेगा। ठीक हाँ, है। ठीक है, सौरभ तुम उसमें उसमें आप चलो अब तुमसे बाद में बात करते हैं। ठीक है, अभी आवाज थोड़ा सा सही करके आओ। और ठीक है अमित, नहीं तो एक बार बाद में फिर से बात करेंगे। सौरभ, तुमने लैपटॉप से ज्वाइन किया क्या? हाँ हाँ।
हाँ, तो शेयर करो और दिखाओ। ओके, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एक मिनट में दिखाता हूँ। थिंक स्क्रीन विजिबल है। हाँ, दिख तो रहा है। So I'm on the edge and यहाँ पे अच्छा, ये बोलता है 3D व्यू 3D है। व्यू। अरे वाह। एंड अभी अभी मैंने ये ब्राउजर को अपडेट किया है, तो ये 3D व्यू आई थिंक डाउनलोड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बट यहाँ पे हमें डॉम दिखता है, लाइक अभी दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे डॉम दिखता है, हमें जेड इंडेक्स दिखती है, कंपोजिट लेयर्स दिखते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो ये ऐसा कुछ दिखता है। जस्ट 3D व्यू। सी, ये वेबसाइट 3D पे दिख रहा है ना। हम्म। तो ऐसा कुछ दिखता है। एंड ये हम पूरा सब कुछ 3D पे देख सकते हैं। एंड इस पे जेड इंडेक्स पे हम ऐसा जेड इंडेक्सिंग भी देख सकते हैं कि कौन पीछे है, कौन आगे है, किसका कितना जेड इंडेक्स है। लाइक यहाँ पे 3 दिखा रहा है, लाइक दिस। इस माइक्रोसॉफ्ट पे वालों ने ले हैं। सही। हाँ देखना पड़ेगा इसको एज में। हाँ, वो पता नहीं क्यों अभी आई थिंक डाउनलोड नहीं हुआ, या जो भी है उस पे नहीं, कुछ इशू है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम दिखा रहे हो उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने वैसे ही यूज है। किया है इसको, कई बार दिख यूज किया है, वो बहुत बढ़िया चलता है। हाँ, जब दिखाने जाओ तो नहीं चलता है। ऐसे ही होता है। हाँ, अब अभी देखो, अभी अभी कुछ कुछ दिख रहा है। अभी कुछ अच्छा, कुछ दिख रहा है। दिख रहा है ये 3D। अच्छा, अच्छा, ये वेबसाइट है पूरी ऐसे। हाँ, ये देखना, ये ना ये कार्ड्स हैं, ठीक है, ये कार्ड्स हम्म, हैं। और ये कार्ड्स हैं मेरे, हम्म, ये कार्ड्स हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे कार्ड्स दिखाता है। हम्म। अभी आई थिंक डाउनलोड हो रहा है, या बैकग्राउंड में कुछ भी जो भी चल रहा है इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, अटक सा रहा है या जो भी है। बट बहुत बहुत बढ़िया दिखता है, आप कभी ट्राई करना। बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कौन सा कहाँ पे जेड इंडेक्स जा रहा है, क्या फट रहा है। सही है। बढ़िया चीज है यार, काफी मस्त चीज बताया तुमने, मुझे पता ही नहीं था। ये मुझे एकदम से तुक्के से पता चले था, मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था करीब 1 डेढ़ साल पहले, जब मुझे एकदम से मैं ऐसे प्लस पे गया, मैंने देखा ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ अच्छा सा लग रहा है। ये ये खोल के देखा तो कब तुमने देखा इसको? ये कितने? मैंने करीब 1 साल पहले देखा था, वो भी ऐसे ही तुक्के से, गलती से। अच्छा, 1 साल से है उसमें? हाँ, मुझे बहुत पता ही नहीं था। पुराना, मतलब मैं क्या है कि मैं एज यूज करता हूँ, मतलब क्रोम भी है, बट मैं एज एज पे प्रोग्रामिंग और वो सब करता हूँ, तो मुझे वो बढ़िया लगता है। अच्छा। लाइट वेट है थोड़ा। हाँ, एच बढ़िया है, क्रोम से तो बढ़िया है, पता है मुझे। लेकिन क्रोम की आपके आदत में हो गई। डाउनलोड होगी आई थिंक, आप ट्राई करो, शायद हाँ, आपके में हाँ, दिख जाएगा। डाउनलोड तो मैं कर रहा था, 1 मिनट। तुम अपने स्टॉप करना, देखते हैं डाउनलोड हुआ कि नहीं। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर Hello, रहा sir. हूँ। हाँ, स्वप्निल बोलो। Sir, you were saying something to me. So that time, sir, actually my internet connection was not stable. Sorry for that. Yeah, it's fine, no problem. क्या बोल रहे थे So सर उस टाइम? I was asking to share your screen and open Edge browser because we wanted to test something in Edge browser, that 3D view. ओके सर, सॉरी Oh, सर, बट वो नेट नहीं चल रहा था. ठीक है, कोई बात नहीं। 1 मिनट, एज इंस्टॉल हो गया है। एज ओपन करते हैं। ठीक है। जस्ट ओपन एनीथिंग, एनी वेबसाइट है। हम्म, ओके। ऑन द प्लस। हाँ, हाँ, कुछ बोल रहा है, यही मुझको भी बोल रहा था कि समथिंग क्या ऐड।
Some Microsoft Edge DevTools components are missing. 3D view will be available until they are installed. Must be connected when launching DevTools to install. हाँ, तो ये शायद आई थिंक बैकग्राउंड में डाउनलोड कर रहा है, मेरा भी ऐसे ही हुआ था और फिर वो डाउनलोड करना स्टार्ट हुआ था। So let's see कहाँ से वो क्या करता है। यहाँ पे कोई लाइक अभिषेक और स्वप्निल और प्रेम एनीवन जिसने एज यूज किया हो? Okay. अच्छा, तो तुम्हें पता है एज का यहाँ पे डेव टूल्स में बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एज। सौरभ, तुम्हें पता है कि नहीं? नहीं एक्सटेंशन का नहीं पता है ये। अरे रुको, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, बहुत मस्त चीज। देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट एज डेव टूल्स है, ठीक है। इसको मैंने इंस्टॉल हाँ कर लिया, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही था। अभी हाँ मैं एक काम करता हूँ, ये मेरी CSS फाइल है, ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ई टैग में लॉरेन, ठीक। इसको ओपन कर लेते हैं। इसको मैं एज में ही ओपन कर लेता हूँ, और एज ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये देखो, यही शायद डाउनलोड हो रहा है क्या, जो हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है, ये शायद एक्सटेंशंस हो रहे हैं। एक्सटेंशंस हो रहे हैं क्या? हम्म, ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। तो अभी अगर कुछ भी अगर हम चेंज करते हैं, ये क्या हो गया, मान लो मैं CSS में जाके कुछ अगर अप्लाई करता हूँ, अरे डेव टूल्स तो नहीं खोल रहा। ये डाउनलोड हो गया, देखो ये दिखने लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा क्या? या इसको बंद करके चालू करना डेव टूल्स हाँ, को। एक बार, नहीं, इसी को न्यू टैब में यहीं पे ओपन कर लेते हैं। ये देखो, खुल गया 3D व्यू। ये दिख रहा, अब दिख रहा, अब मजेदार है। इसको, ये देखो कैसे, ये ऊपर नीचे कैसे होगा। वो स्क्रॉल व्हील से भी जूम हो जाता है और ये यहाँ से जो बटन्स बने वहां से भी हम्म, पूरा। इस पे ऑप्शंस भी हैं, आप जेन इंडेक्स देख सकते हो, आप डॉम देख सकते हो लेफ्ट साइड पे बिल्कुल। अच्छा, जेड इंडेक्स, आई थिंक वो अभी सेटअप पे ले रहा है। सही से काम करता है कि अटक के ही काम करता है? नहीं वो बहुत सही काम करता है। अभी आई थिंक वो उसने नया नया इंस्टॉल हुआ है, तो हम्म, शायद टाइम ले ले, या फिर आप रिफ्रेश करके करो, हम्म, बिकॉज वो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद डाल के दिया है, तो अटकना तो नहीं चाहिए। हम्म। डेवटूल्स बंद करके देखना आप जरा, इंस्पेक्ट को क्लोज करके। जस्ट मुझे लगता है माउस के साथ इसको यूज करने में ज्यादा सही रहेगा ना। हम्म हम्म, ये देखो कितना ज्यादा है, बहुत मस्त है यार ये। मजा आता है इसको घुमाने में। हम्म, मतलब
कुछ मिले ना मिले पर घुमाते रहो। ये उल्टा हो गया। ये देखो, जेड इंडेक्स यहाँ से दिखेगा, शो ऑल, ये कैसे आएगा? सो अच्छा ऑल जैसे स्टैकिंग, या यहाँ पे सो ऑल स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करना, सेकंड ऑप्शन। या दिखाना तो चाहिए था। जैसे ही मैं जेड इंडेक्स वाले पे आता हूँ ना, ये अटकने लगता है। हाँ तो आई थिंक वो अभी डाउनलोड नहीं किया होगा उसने, बैकग्राउंड में सब चल रहा होगा उसका प्रोसेस, माइट बी। चल एक बार ऑन वो हो तो जाएगा तो आप एक्सप्लोर करना पूरा, मतलब बहुत कुछ है, बहुत हेल्प मिल जाती है। बहुत सही है। एक मिनट, को नीचे जाते हैं, टेस्टिमोनियल, ये है, बैटरी सही है। हाँ सही, इसको तो देखना पड़ेगा बढ़िया से। सही है। तो अभी मैंने वो खोला था, क्या था, 1 2, ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कलर वलर चेंज करता हूँ, लिखता हूँ H1 का कलर ग्रीन, ठीक है, ये चेंज हो गया। तो अभी मुझे ब्राउज़र में जाके देखना पड़ रहा है, अगर कंसोल में भी कुछ मैं कंसोल डॉक लॉक कर रहा हूँ हाय या कुछ भी, तो यहाँ पे आके कंसोल में देखना पड़ेगा। लेकिन जो डेव टूल्स का एक्सटेंशन है, देखो उससे क्या कर सकते हो। अभी तक हम लोग लाइव सर्वर के साथ यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। मैंने लाइव सर्वर बंद कर दिया, अभी ये हाँ एकदम बंद हो गया। अभी देखना, यहाँ पे राइट क्लिक करो और ओपन विथ एज, ठीक है, ओपन ब्राउजर, ये एक ब्राउजर इसके अंदर ही खोल देगा, ठीक है। ओपन विथ ब्राउजर, यहीं पे ब्राउजर खुल गया। और देखना यहाँ पे ये कंसोल भी यहाँ पे आ गया है। अगर हमें वैसा वाला कंसोल चाहिए, तो जैसा डेव टूल्स वाला कंसोल होता है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे अगर, तो ये देखो इसी के साइड में अभी कंसोल भी आ जाएगा। एक मिनट, ये किया, ये देखो कंसोल एलिमेंट सब कुछ यहीं पे VS कोड के अंदर। और ये देखो, हाँ यहाँ पे क्लिक हुआ, देखो मान लो मैंने CSS फाइल खोल रखी है, यहाँ पे हाई प्रिंट होके आया। अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे स्क्रिप्ट डॉट जेएस में ले जाके दिखा देगा कि हम्म, यहाँ पे, यहाँ से ये आया है सीधा इसी के अंदर डेवलपमेंट। और यही नहीं, और सुनिए, देखो यहाँ है, ये यहाँ पे देखो, ये CSS फाइल है, यहाँ पे कलर हाँ, ग्रीन लिखा है, ठीक है। इसमें एक फीचर है CSS मिररिंग का। अगर मैं यहाँ से ग्रीन को चेंज करके कोई हेक्स कलर कोड चेंज कर रहा हूँ, तो देखो ओह, मेरी असली फाइल में चेंज हो रहा है। ये देखो मेरी ओरिजिनल ये फाइल में तो चेंज बढ़िया है ये। है ना। और इसमें बस एक चीज़ है, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होता है। अगर मैं इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ, तो इसको हमें हाथ से रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं है। हम्म, बस, तो ये हो गया। और जैसे यहाँ पे सोर्स टैब नहीं मिलेगा, यहाँ पे एलिमेंट्स मिलेगा, यहाँ पे नेटवर्क मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। सोर्स टैब नहीं मिलेगा। तो सोर्स टैब कहाँ है पता है?
सोर्स यहाँ पे है पूरा। देखो यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे सारे। अगर कुछ वॉच करना है तो ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे, अभी देखो मैं लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे अगर हम डिबगर लगाएं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे डिबगर लगा सकते हैं। इस पे अगर हम क्लिक कर दें, जो रेड बटन है, तो यहाँ पे डिबगर लग गया। और मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा कोड वीएस कोड में रुका है आके, देखो। और वेरिएबल्स अगर मैं क्रिएट कर दूं यहाँ पे, कॉन्स्ट num1 is equal to 5, const num2 is equal to 10, ठीक है। और मान लो const user is equal to लगाना था, और फिर नेम, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, अभी एक बार अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आके रुकेगा। और क्या क्या वेरिएबल्स हैं हमारे इस पेज के अंदर, हमारे इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, ये यूजर नाम से वेरिएबल है, ये दिख रहा है पूरा, सब प्रोटोटाइप दिख रहा है, सब कुछ यहीं पे दिख रहा है। यहाँ पे कॉल स्टैक आ जाएगा, जो कॉल स्टैक वहाँ सोर्स टैब में होता है। ये इस ब्रेक पॉइंट पे रुका है, सब कुछ सब यहीं कुछ पे, दिख रहा एकदम मस्त। ये बड़ा स्क्रीन हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा वो है। हो गया, हाँ, सारा क्लटर हो गया। लंबी स्क्रीन चाहिए वही इसके लिए। लैपटॉप पे थोड़ा मैसी हो जाएगा वो। तो है रिएक्ट तो पे बहुत प्रोजेक्ट अगर फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। है तो बहुत बढ़िया चीज, बस स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा है इसीलिए। इसको अगर हाँ, हम, ये हाँ बोलो। मतलब जो आपने बताया ना वो हम लेफ्ट साइड पे जब हम कंसोल खोलते हैं वहां पे जाके हम जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखा था हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो फाइल कर देता है और चेंजेस भी हो जाते हैं। हाँ तो वैसा कुछ आई थिंक मैंने एज पे किया है, क्रोम पे भी होता होगा शायद, मुझे नहीं पता। वो ना हमको पूछता है जब हम सबसे पहले खोलते हैं डेव टूल्स, तो वो पूछता है कि आप अलाउ करना चाहोगे इस चीज को, सिंक कर देता है वो वीएस कोड से। तो मैंने बहुत पहले यूज किया है वो, वैसा अच्छा। होता था। फिर उसको मतलब ज्यादा यूज नहीं किया फिर। हम्म, तो पर ये भी सही है, ये एच टी एम एल सी एस एस और ये लर्निंग के टाइम सही है, मुझे एज नहीं खोलना पड़ेगा बार बार। इवन अगर थोड़ा सही से हो जाए स्क्रीन स्क्रीन तो डेवलपमेंट के लिए भी ठीक है। देखना पड़ेगा रिएक्ट के साथ कैसे इसमें कर सकते हैं। बस यहाँ पे अगर ये एक नए टैब में, मतलब एकदम नई विंडो में खुल जाता कहीं से, तो ठीक रहता, क्योंकि यहाँ पे ये दिखना ये सही चीज है। यहाँ पे देख देख सकते हैं। मैं इसको यूज तो नहीं करता हूँ, लेकिन है कूल, इसको मतलब देखना है, कभी बड़ी स्क्रीन आए तो देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है। एक मॉनिटर था मेरे पास, मैं वो यूज टूट गया। करूँ मैं तो यूज करूंगा इसको, क्योंकि मैं मेजरली मैं जब भी मुझे कुछ नया पता चलता है जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल का, तो मुझे बार बार वीएस कोड और एज में जाके देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है। और इस एज एक्सटेंशन को चलाने के लिए लैपटॉप में एज इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। विंडोज में तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड ही रहता है, मैक में करना पड़ता है। सही है। और कुछ ऐसे ही बताया करो मस्त मस्त चीज, अगर कुछ मिले तो। बिल्कुल। सही है। आप और डॉकर यूज करते हो, मतलब आप आपका एक्सपीरियंस है डॉकर पे? एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, बस इंस्टॉल्ड है। एक बार रन कर देते हैं, चलता है ऑफिस का कुछ, डेटाबेस वोटाबेस सब उसी में। अभी सीखना है, बैकएंड वैकेंड सीखेंगे जब सही से,
तब डॉकर वॉकर भी सीखेंगे। डॉकर मैंने बहुत नाम सुना है डॉकर का। पहले जब मैं फ्रंट एंड पे इतना है मतलब एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज नहीं था, तो मैं लोगों को देखता रहा, लोग डॉकर, क्यूबरनेटीज, हम्म, क्लस्टर्स, हम्म, कंटेनर्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम्म, हम्म। मुझे लगता रहा ये क्या कर रहे हैं भाई, करते क्या है ये। ये मैंने एक बार डॉकर का वो कोर्स भी खरीदा था। एक हाँ। अरे उनका हितेश चौधरी का लर्न कोड ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म था ना, हम्म। तो उसी प्लेटफॉर्म से हितेश चौधरी का एक कोर्स खरीदा था और मैंने उसको फॉलो किया था, पढ़ा तो रहे थे सही, लेकिन मुझे अपने वर्कफ्लो में उसकी जरूरत ही नहीं थी। मैं बस हाँ। नाम और हाइप सुन के बस सीख रहा था, जैसे तुमने तुमने सुना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हाँ आना से। चाहिए। तो नाम और हाइप सुन के मैं सीख रहा था, लेकिन मुझे अपने वर्कफ्लो में जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने छोड़ दिया उसको। वो बैकएंड में जब तुम पूरा एप्लीकेशन बैकएंड डिप्लॉय करते हो तो उसके केस में हाँ। ज़्यादा यूजफुल होता है वो। बैकएंड जब सीखेंगे तो डॉकर सीखेंगे, अभी हम लोग के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। हम्म। ये हो गई। सही है। ओके। हाँ आपने मेरा लेटेस्ट पोर्टफोलियो देखा था, मैंने ग्रुप पे शेयर किया था। हाँ हाँ, मैंने देखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक मिनट। वो वो मैंने ना मतलब सीखने के लिए बनाया था कि मुझे अच्छा। टाइपस्क्रिप्ट सीखना था। तो मैंने टाइपस्क्रिप्ट इंटीग्रेट कर दिया उस पे। मुझे हम्म 10 स्टैक क्वेरी सीखना था कि कैसे काम करती है, मैंने वो भी इंटीग्रेट कर दिया उससे। हम्म। और अ, वो एक एनिमेशन टाइप का, एसवीजी एनिमेशन टाइप का आता है वो, लूटी, रिएक्ट लूटी एनिमेशन ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। वो भी लगा अच्छा। के देखा, वो बड़ा मस्त लग रहा था, तो वो लगाया था मैंने। अच्छा, एक मिनट। और तुमने नेक्स्ट जेएस पे अच्छा नेक्स्ट.js में बनाया उसको? या, ठीक है। ये कहाँ पे वो एनिमेशन लाइब्रेरी यूज़ किया है? ये जो सबसे ऊपर वो एनिमेट हो रहा है, वो ये अबाउट मी पे भी जो चल रहा है ना, ये अच्छा पॉपअप निकल के आता है। अच्छा, ये पूरा एनिमेशन उससे किया है, लाइब्रेरी से? हाँ मतलब ये ना हमको ये एक रिएक्ट लोटी करके ऐसे एक पैकेज है, वो इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड इसका एक अलग से ही मार्केट प्लेस टाइप का है। तो ये 3D एनिमेशंस जेसन फॉर्मेट में हमको देता है। उसको फिर अच्छा इस लाइब्रेरी में डालना पड़ता है और वो कंपोनेंट बन के ऐसा दिखता है मस्त। अच्छा, एक मिनट, इसका नाम मैंने सुना है वो। एक मिनट, लोटी है ना? क्या नाम है पूरा? LOTTIE। हम्म, लॉटी फाइल्स। अरे यार, इसको मैंने देखा है मुझे। हाँ हाँ, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। हम्म, हाँ ये बहुत सही है, इसको मुझे देखना पड़ेगा यूज कर। बहुत ही अच्छा है यार। हाँ तो ये और हम एनिमेशन मुझे मुझे ना, वो एक चैनल है ना डेव एड करके, बहुत फेमस हाँ। है। तो उसने पोर्टफोलियो बना रहा था, उसने यूज किया था एक बहुत बढ़िया एनिमेशन, तो मुझे लगा यार ये एनिमेशन तो बढ़िया लग रहा है। हम्म तो वो ऐसे ढूंढते ढूंढते फिर मुझे यहाँ मिला कि ये ऐसे कर सकते हैं, तो मैंने वो इंटीग्रेट कर दिया। हम्म, मतलब थोड़ा ऑड लग रहा होगा, उसका कलर वगैरह मैच नहीं है थोड़ा, थीम वगैरह से हाँ, मैच नहीं हो रहा, बट मुझे लगा कि यार लगाना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे हम्म, अच्छा लग रहा है बस। सही है। अभी डिजाइन में कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स बाकी हैं अभी। हाँ। डिजाइन में जैसे कि ये ये वाला सेक्शन में फॉन्ट साइज बड़ा हाँ है आप। और कार्ड्स थोड़े लंबे हैं, और हम्म। बैकग्राउंड कलर ज्यादा डार्क है, थोड़ा हल्का सा कम डार्क करो ओके। बैकग्राउंड। हाँ, जैसे कि थोड़ा सा अगर कम डार्क करें इसको तो थोड़ा सा आंख में नहीं चुभेगा, जैसे व्हाइट कलर एकदम आंख में चुभता है ना,
वैसे ही ब्लैक कलर भी आँख में चुभता है। बैकग्राउंड कलर कहाँ पे दिया है, किस सेक्शन पे? पूरे का बॉडी पे दे दिया क्या? बॉडी पे है, मेन पे कहाँ पे? I don't remember. नहीं, रुको अभी ढूंढ लेंगे। मेन टैग को मैं डिलीट कर देता हूँ तो भी है, इसका मतलब मेन टैग में नहीं है। इमेज क्या है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट क्यों नहीं हो? बॉडी को डिलीट कर दोगे? बॉडी डिलीट हो जाता है। हो जाता है। तो भी ये डार्क कहाँ से है डार्क? HTML में तुमने लगा दिया है सीधा। नहीं, अरे आई थिंक, अरे वो डार्क मोड और लाइट मोड के कारण होगा शायद से। हाँ, कलर स्कीम डार्क मोड तुमने किया इसलिए। हाँ कलर स्कीम डार्क मोड, ये प्रॉपर्टी आ गई है क्या CSS में? हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, डार्क मोड और लाइट मोड में टॉगल करने के लिए यूज करते हैं ना। ऐसा मुझे पता ही नहीं था, कलर स्कीम डार्क मोड इसको प्रॉपर्टी। इसको इसको एनेबल करना, एंड वो ऊपर हेडर पे नेव बार पे जो बना चंदा मामा टाइप, हाँ इस पे क्लिक हाँ, करना डार्क ये। एंड लाइट, तो ये ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर रहा है ना? हाँ, ये नेक्स्ट थीम पैकेज ने हेल्प किया था इस पे। अच्छा, इसमें तो फिर किसी थीम की जरूरत नहीं है, मतलब ये अगर है, ये CSS की प्रॉपर्टी है तो इसी कलर स्कीम ये देखना पड़ेगा कहाँ की कलर सीएसएस स्कीम। में है ना ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ये जैसे मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डार्क कलर हो रहा है तो ये भी डार्क मोड कर देगा ऑटोमेटिक। अगर लाइट पे है तो लाइट कर देगा उसमें। अच्छा, नॉर्मल ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ऐसा है? नॉर्मल तो जो नॉर्मल है ही है वही है, लेकिन लाइट एंड डार्क ये बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं ना। जैसे सिस्टम आपका डार्क पे रन है हम्म। तो वो डार्क हो जाएगा। ये मुझे पता ही नहीं वो था। ऐसे उठा लेता मैंने बहुत दिन हो गया CSS ही नहीं देखा। सही है। लेकिन इसमें कलर्स खुद से कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं ना? तुम्हें अगर चाहिए कि, सिस्टम के अकॉर्डिंग है तो। हाँ मतलब ये यहाँ ब्लैक, पे सिर्फ हम दो चीज चूज कर सकते हैं, या लाइट या डार्क। तो आप हाँ तो ये लाइट पे कलर कुछ भी कर दो, डार्क पे कुछ भी कर दो। तो जैसे बैकग्राउंड का कलर ये तो ऑटोमेटिकली इसने डिसाइड किया है ना, टेक्स्ट का कलर भी ऑटोमेटिकली इसने डिसाइड किया है। तुम्हें नहीं भैया, हाँ, चेंज कर सकते हैं इसमें। हाँ, चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो तुम्हें वो एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, उसको स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। नहीं, इसकी ना मीडिया क्वेरी टाइप होती है, स्क्रीन एंड मीडिया कलर स्कीम करके एक वो है, सीएसएस की प्रॉपर्टी है। तो अच्छा, वो यूज करते हैं, उसमें सेलेक्ट करेंगे जैसे अगर डार्क मोड है तो कौन सा बैकग्राउंड कलर लगाना है बॉडी पे, अगर लाइट है तो कौन सा लगाना है। तो अच्छा, ऐसे है एक, प्रॉपर्टी एक। हाँ, एक मिनट, क्या मीडिया होती है? कलर स्कीमा करके सर्च करो, इसमें होगी मी, कुछ। मीडिया कलर स्कीम। प्रेफर है मीडिया प्रेफर कलर स्कीमा, ऐसा कुछ हाँ, है। हाँ, ये ये है ना वाला। प्रेफर कलर। हाँ, प्रिफर्स ये रहा, कलर अगर स्कीम। डार्क है तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। हम्म, सही। नहीं है, इसको देखना पड़ेगा मुझे, ये मुझे पता ही नहीं था, आज पता चल रहा है। मैंने कुछ और यूट्यूब वीडियोस देखे थे, उसमें ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता था। और सही है, मतलब खुद से कलर्स कस्टमाइज कर सकते हो इस बेसिस पे, ये यूज करके। हाँ, मीडिया क्वेरी यूज करके कर सकते हैं। हम्म, ये सारे आइकन्स कहाँ से मिले तुम्हें? ये भी एक वेबसाइट है, आइकन्स स्काउट ऐसा कुछ करके, आइकन्स आउट ऐसा कुछ है। हाँ, आइकन स्काउट, ऐसा है। वो ये तो फ्री वाले मिल गए, वो पेड देती है बहुत कुछ।
ये पता नहीं कैसे फ्री मिल गया बस। इस पे भी नेक्स्ट जेएस वाला नहीं मिला तो उस पे सिर्फ इमेज लगाई। हम्म, ये सही है वर्क एक्सपीरियंस वाला एनिमेशन भी बहुत बढ़िया लगा था मुझे, ये हाँ रिएक्ट वाला। ये वाला भी सही है। ये उसी लॉटी से है क्या? हाँ ये भी उसी से। बहुत सही चीज है। सही है, इसको थोड़ा सा इसका यूआई सही करो, मतलब कलर वलर थोड़ा कस्टमाइज हम्म करो और देखो कैसे कर सकते हो। तो बढ़िया है काफी। यूआई में जो थोड़ा ये है ना रेनबो टाइप में, ये थोड़ा तुम और डिजाइन देखो और जगह से इंस्पिरेशन लो और इसको इम्प्रूव कर सकते हो। हम्म ठीक है, ओके। बाकी ये सारे सेक्शन सही हैं और सही है ओवरऑल। ठीक है। और कैलाश, कैलाश तुम बताओ क्या हाल चाल है? अभी ज्वाइन किया है तुमने? जी सर बढ़िया। कहाँ से हो तुम? जी मैं फरीदाबाद से हूँ, हरियाणा से। अच्छा, सही जी है। सर। क्या पढ़ रहे हो अभी? जी मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ अभी। अच्छा, तुम जॉब कर रहे हो अभी? हाँ। नहीं सर, मैं मेरा लेड ऑफ हो गया था। पिछले महीने मेरा लेड ऑफ हुआ है अच्छा किसी कंपनी से। जी। अच्छा। मुझे तो अभी एक 1.5 साल के करीब एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड में। और अभी मैं बैक एंड पढ़ रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, तो जी सर। फ्रंट एंड में क्या क्या किस किस चीज़ पे काम किया है तुमने? जी मैंने नेक्स्ट पे काम करा है और रिएक्ट जीएस पे काम करा है मैंने। अच्छा जावास्क्रिप्ट मुझे थोड़ी बहुत आती है। अच्छा। जी। जी तो सर। मैं कैसे मिला, मेरा चैनल कैसे मिला, तुम कहाँ से? सर आपके वीडियोस वगैरह देखे थे मैंने यूट्यूब वगैरह पे। तो आपको फॉलो भी कर रखा है मैंने तो। अच्छा आप आपका डिस्क्रिप्शन में आपने डाल रखा था अपना टेलीग्राम का। उसके थ्रू मैंने आपका चैनल वगैरह ज्वाइन करा था। अच्छा। तो उसी के। हाँ। तो तो- जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के वीडियोस देखे हैं तुमने? जी सर देखे हैं जावास्क्रिप्ट के वीडियोस। अच्छा, सही है। देखो, तुम्हें जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। सीएसएस जी मतलब रिएक्ट और नेक्स्ट उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी जावास्क्रिप्ट है। यार जावास्क्रिप्ट बढ़िया से हाँ आती है तो रिएक्ट और नेक्स्ट बड़े आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट जी अच्छे से नहीं आती है तो रिएक्ट और नेक्स्ट में दिक्कत होगी। इसीलिए अपना जी जावास्क्रिप्ट के ऊपर पकड़ मजबूत करो, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग करो। ठीक है। जी सर। जिस जिस टॉपिक में तुम्हें डाउट लगता है उस टॉपिक के वीडियोस देखो, मेरे ही वीडियोस देखो, मैंने हर एक टॉपिक पे बनाए हैं। तो जी सर। जैसे कि अभी तुम्हें क्या लगता है कि कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हारे जावास्क्रिप्ट में कम अच्छे हैं या कमजोर हैं, जो कि तुम्हें जैसे पढ़ने सर चाहिए? प्रोमिस चेन हो गई। हम्म प्रोमिस चेन, कॉल बैक हेल और हम्म थ्रेड हो गया। हम्म और और भी बहुत सारे एसिंग इवेंट हो गया जो मतलब डेप्थ में होता है ना। हम्म अंदर जाके मतलब बेसिक्स तो मतलब आता है बट अंदर जाके जो होता है ना वो सब कुछ। हम्म कॉम्प्लेक्स कोडिंग करता हूँ ना तो मैं ना अटक जाता हूँ। हम्म कॉम्प्लेक्स कोडिंग करने में लॉजिक वगैरह बिल्ड नहीं हो पाते मुझसे। हम्म और मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ मतलब को लॉजिक बनाता हूँ तो मैं हम्म। कॉम्प्लेक्स कोडिंग करता हूँ तो। और अभी जावास्क्रिप्ट में तुमने कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं, या कोई भी सर प्रोजेक्ट मैंने जावास्क्रिप्ट? करड करड एप्लीकेशन बनाई है मैंने सर। केवल फॉर्म जावास्क्रिप्ट में या वगैरह इमेज के साथ। रिएक्ट, रिएक्ट भी यूज किया? नहीं, रिएक्ट जेएस यूज करके मैंने करड एप्लीकेशन बनाई थी। अच्छा, मैं केवल जावास्क्रिप्ट का पूछ रहा हूँ, केवल जी जावास्क्रिप्ट सर। यूज करके कोई भी बनाई है ठीक ठाक एप्लीकेशन? नहीं सर, जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं करा कोई मैंने।
हाँ रिएक्ट तो जेएस के थ्रू बनाई है। तो अभी जावास्क्रिप्ट की तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है काफ़ी। जावास्क्रिप्ट, जी सर। हाँ जो भी तुम रिएक्ट का यूज़ करके बना पा रहे हो, सेम चीज़ मतलब जो भी रिएक्ट का यूज़ करके बना रहे हो, वो सेम चीज़ तुम केवल जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करके बना पाओगे जब, तो और आराम से बना लोगे, तब समझ लो जावास्क्रिप्ट ठीक से आ गई है। और जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। जावास्क्रिप्ट से तुम ऐसी ऐसी चीज़ें बना सकते हो जो रिएक्ट से नहीं बन सकती, कि रिएक्ट खुद जी ही सर। जावास्क्रिप्ट ही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रोमिसेस हो गया, कॉल बैक हेल हो गया, एसिंक अवेट हो गया, ये सब कुछ हाँ मैंने जी। पढ़ाया है जावास्क्रिप्ट में पूरी सीरीज में। तो प्लेलिस्ट खोल लो और जो भी टॉपिक तुम्हें लगे कि जिसमें तुम्हें डाउट है, जिसमें तुम्हें जी सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उस टॉपिक का वीडियो अच्छे से देखो। और जैसे मैंने प्रैक्टिस करवाया है वहाँ पे डेव टूल्स में, मैंने मैंने कोड लिखा है डेव टूल्स में, मैंने दिखाया है, वैसे तुम भी प्रैक्टिकली करके देखो कि वैसे आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो अगर ऐसे करोगे तो जावास्क्रिप्ट अच्छी हो जाएगी। और जावास्क्रिप्ट में खूब सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ पहले। और मैंने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट भी बनाई है, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स की। तुम वो जी प्लेलिस्ट सर। भी तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पहले वीडियो मत देखो। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, और इसको वीडियो ठीक देखने है। से पहले तुम पहले खुद बनाओ। जब तुम बना लो, तुमसे बन जाए, उसके बाद में वीडियो देखना है। जी सर। पहले वीडियो देखने से ज्यादा कोई फायदा है नहीं, कुछ भी नहीं, बस तुम केवल टाइप ठीक कर है। दोगे आंख बंद करके। तो जी सर। हाँ, वैसे करो। और बहुत सारी चीजें हैं जावास्क्रिप्ट में सीखने के लिए, टाइम देना हाँ जी पड़ेगा, सर। मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ से तुमने सीखा था वेब डेवलपमेंट, कौन से सर कोर्स मैंने से? स्टार्टिंग कोड विद हैरी से करी थी, स्टार्टिंग कोड विद हैरी। अच्छा। 2012 का कोई सा कोई कोर्स है, और फुल फुल स्टैक में, फ्रंट एंड में, उससे से स्टार्टिंग करी थी मैंने कॉलेज लाइफ में अपनी। अच्छा, तो जी सर। अभी फुल स्टैक में तुम बैकएंड में क्या सीख रहे हो, नोड जेएस? नोट जैसा भी सीख रहा हूँ सर मैं। अभी बेसिक बेसिक आता है मुझे। स्टार्टिंग मैंने 1 हफ्ता हो गया स्टार्ट करे हुए। अच्छा, तो मैं क्या जी। सजेस्ट करूंगा कि नोड जेएस तुम छोड़ो, तुम जावास्क्रिप्ट पहले सीखो अच्छे से, ठीक है? जी सर। और जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट ये सब बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे तो जॉब मिल जाएगी। मतलब तुम्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तुमने किया भी है, तो जी सर। हाँ, मिल जाएगी जॉब। पहले तुम अपना फंडामेंटल और फाउंडेशन स्ट्रांग करो, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। अगर वेब डेवलपर बनना है तो सीएसएस और जावास्क्रिप्ट एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, मस्त, ठीक है? तो ठीक है सर। ये दोनों चीज़ें अभी स्ट्रांग करो, और इसी के बेसिस पे, केवल जावास्क्रिप्ट के ही बेसिस पे तुम्हारी जॉब लग जाएगी, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के बेसिस पे। फुल जी स्टैक की सर। ज़रूरत नहीं। फुल स्टैक जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए फ्रंट एंड में कि अब सब कुछ आता है तुम्हें, सब कुछ बना ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन भी बन रही है, तब उसके बाद जब फ्रंट एंड में कोई दिक्कत ना आए तब बैक एंड सीखो। ऐसा नहीं कि बैक एंड नहीं सीखना, एक बार कंफर्टेबल हो जाओ एक चीज से, एकदम अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ। और यही मैं उन लोग को भी कहूंगा जो बैकएंड सीख रहे हैं। अगर कोई बैकएंड डेवलपर है तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बैकएंड सीख के फिर आ जाए फ्रंट एंड सीखने लगे। अगर फुल स्टैक बनना है तो बैकएंड में पहले एकदम कंफर्टेबल हो जाओ। जो बैकएंड सीख रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, एक चीज पहले पूरा सीख लो बढ़िया से, एकदम आराम से तुम काम करने लगो उसमें, उसके बाद दूसरी चीज में घुसना है। और चाहे बैकएंड सीखोगे चाहे फ्रंट एंड सीखोगे, नौकरी तभी मिलेगी जब तुम मास्टर रहोगे, ठीक है? एक चीज जब बढ़िया से आती रहेगी। और अगर थोड़ा सा ये भी आता है, थोड़ा सा वो भी आता है, तो लटके रहोगे बीच में और कुछ भी नहीं बता पाओगे, इंटरव्यूज नहीं निकल पाएंगे, दिक्कत होगी। तो जावा स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? और प्रोजेक्ट्स बनाओ। और अगर कोई भी हेल्प हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? यहाँ पे पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, जी सर। ठीक है? और अभिषेक,
और कुछ कहना है कैलाश? नहीं सर, बस एडवाइस चाहिए थी आपकी, वो आपसे ठीक मिल है, गई हमें। ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, सही। अभिषेक तुम बताओ क्या कर रहे हो? ठीक है। विनीत तुम्हारा क्या हाल चाल है? बढ़िया है मेरे हाल चाल। तो फुल स्टैक का मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, एक उसमें एक दिक्कत आ रही थी। अच्छा, क्या नोड जेएस में दिक्कत है कि किस में दिक्कत है? हाँ मतलब बैकएंड से लॉगिन करते हैं ना, तो वो लॉगिन के टाइम पे डेटा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों सर्वर के पास में। अच्छा, सर्वर में डेटा नहीं जा रहा, फ्रंट एंड से नहीं जा रहा है? हाँ। कब से है दिक्कत? कितना दिन हुआ? अरे ये अभी से ही है, अभी से ही है। मैं अभी बना रहा था, मतलब कल से बना रहा था, तो कल से हो नहीं रहा था। ठीक है, तो ट्राई करो, आज हो तो जाएगा। कुछ वैसे बिजी सा था, तो एक बार बताओगे आप देख के कहाँ कब दिक्कत है, से, कितने देर से है दिक्कत ये? अगर समझ में आए तो। कितने देर अरे से कल है ये से ही दिक्कत? है। कल से है? कल से है। अच्छा, हाँ। ठीक है, दिखाओ तो, देखते हैं क्या दिक्कत। तुमने एपीआई टेस्ट करी है? एपीआई सही हाँ चल रहा पोस्ट रजिस्टर हो रहा है। बाकी वो लॉगिन पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। है? एपीआई अगर चल रही है तो फिर फ्रंट एंड पे ही कुछ प्रॉब्लम होगा, एपीआई पे डेटा नहीं जा रहा होगा। जैसे अभी ये रजिस्टर वाला है मेरा, तो हम्म, जैसे डेटा मैंने फिल कर लिया इसमें, हाँ, एक तो बार ये नेटवर्क टैब ओपन करो, नेटवर्क टैब रजिस्टर। ओपन, नेटवर्क टैब ओपन करके क्या करो। हम्म, हम्म, क्या है यहाँ पे देखो, पेलोड क्या इसमें है? कुछ नहीं। पेलोड में दिखाओ क्या है, क्या गया पेलोड में? तुमने पूरा, ठीक है, पूरा डिटेल भेज दिया है। किस यूआरएल पे भेजा है, एक बार यूआरएल ये दिखा तो दो। रजिस्टर का है, ये तो यूआरएल ये रहा, लोकलिस्ट लोकल होस्ट 500 पे। 500/यूजर, इस पे पोस्ट हाँ। रिक्वेस्ट भेजने पे तुम रजिस्टर करवा रहे हो, और वहां से आ रहा है हाँ बैड रिक्वेस्ट। तुम अपना एपीआई ये तुमने तो ऑन अभी तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा तो गेट सर्वर रिक्वेस्ट तो रनिंग इस पे, ये तो वैसे ही दिखा रहा है। ये तो अभी जैसे लॉगिन वाले पे दिक्कत है, ये तो फिर भी चल रहा है जैसे मैंने करा। तुम्हारा बैकएंड सर्वर रनिंग है? बैकएंड रन है ना, ये रन हो रहा। एक बार पोस्टमैन से चेक कर लो, पोस्टमैन से चेक किया है कि नहीं? मैंने ये कर रखा है थंडर क्लाइंट, हाँ, तो ठीक इस है, पे इस पे, देखो। हाँ, ये दिखाओ इस पे। अब देखो, जैसे यहाँ पे गेट क्या रिक्वेस्ट आ रही है, देखो। पोस्ट रिक्वेस्ट तुम कर रहे थे ना? पोस्ट रिक्वेस्ट करो, पोस्ट देखो। पोस्ट में बॉडी भी डालना पड़ेगा। इसमें कई सारे फील्ड हैं, यूजर नेम रिक्वायर्ड है जैसे। पूरा वो जेसॉन डाल सकते हो ना, जेसॉन डाल दो, जेसॉन कॉपी करके वहां से डाल दो। फॉर्मेट पे एक बार क्लिक ये करो। नहीं नहीं, फॉर्मेट पे जो डेटा है वो सही से फॉर्मेटेड नहीं है। अब एब्सेंट करो। ये ठीक है, सेंट हो गया, डेटा आ गया हाँ, सारा। यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, ये अब पोस्टमैन इसमें से काम कर मतलब, रहा है। हाँ ये तो रन हो रहा है, बस लॉगिन वाले में पता नहीं। देखो मैंने राउट्स वगैरह सब बना रखे हैं, तो लॉगिन वाला ये यहाँ पे लॉगिन। टेस्ट करके दिखाना, यहाँ पे यहीं पे दिखाओ लॉगिन वाला।
रिएक्ट कैसे यूज कर रहे हो भाई? हाँ भाई, रिएक्ट कैसे यूज कर रहे हो, मतलब क्या यूज कर रहे हो रिएक्ट के लिए? वीट यूज कर रहे हो या फिर कोई हाँ और दूसरा? वीट है। उसमें मैं जब प्रॉक्सी से सेट वीट किया आया हुआ? है, अरे बिना प्रॉक्सी के भी हो रहा है उसमें। अच्छा जब रजिस्टर हो रहा है तो वो भी तो हो रहा है, रजिस्टर की रिक्वेस्ट जा रही है। अच्छा, फिर तो सही है। कीज जो है तुम्हारी उनको भी स्ट्रिंग बनाओ। हाँ ये जेसॉन है यहाँ पे। ये पेज नॉट फाउंड रिक्वेस्ट आ रही है, पता नहीं। अच्छा जो कि लॉगिन का राउट मैंने बना भी रखा है, ये रहा। हाँ वो इसमें कंट्रोलर में तुम्हारी दिक्कत है, वो दिखाओ। कंट्रोलर ये में मैंने सिंपल पैरामीटर्स लिए हैं। तुम्हारा तुम्हारा राउट आई थिंक मिसिंग है, देखो अरे चेक यहाँ करो एक पे बार। रिस्पॉन्स तुम क्या दे रहे हो यहाँ से? तो तुम रिस्पॉन्स तो पहले मतलब यहाँ पे वैसे एरर नहीं आनी चाहिए ना, पेज नॉट फाउंड की, लॉगिन राउट पे। तुम देखो ना, तुमने वहां पे लोकल होस्ट स्लैश यूजर्स एक स्लैश मिनट, यहाँ पे पोस्ट नहीं ना, गेट रिक्वेस्ट जाएगी। देखो ये इस पर बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, दिक्कत ये आ रही है। अब देखो यहाँ पे ये पता नहीं क्या लॉगिन ये ऐसे दिखा रहा है। यूजर स्लैश लॉगिन किया है ना, वहां पे सिर्फ लॉगिन है। नहीं 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 नहीं, वो जो है ना कस्टम राउट है ये। बैक जो सिंपल राउट है ना, उस पे तो बस इतना ही ओके, रिस्पॉन्स है। वो कस्टम राउट है यूजर का, उसके अंदर है, यूजर के अंदर सारे। तुम तो ये पता नहीं तुम क्या रिक्वेस्ट ऐसे एक बार वो जो आ रही जहाँ पे है वो लॉगिन वाला फंक्शन, एक बार उसको उसके अंदर कुछ रन करो। लॉगिन वाले फंक्शन के अंदर है। आ जहाँ जाओ। हाँ यहाँ पे यहाँ गेट यूजर, हाँ यहाँ पे कुछ कंसोल लॉग जो कर रहे हो वो कहाँ पे दिख रहा है? एक बार कंसोल कंसोल लॉग वो रहने दो जो कर रहे थे। यहाँ पे आ रहा है ना ये रिक्वेस्ट जो एरर ये आ रही है। ठीक है, कंसोल लॉग में क्या क्या कंसोल लॉग किया था? एक बार दिखाओ क्या मैंने ईमेल कंसोल। पासवर्ड ही करा था बस। अच्छा मैंने कहा ये भी तो आनी चाहिए, तो वो भी नहीं आ रहा है। तो ईमेल और पासवर्ड नहीं आ रहा है कंसोल में प्रिंट होके? कंसोल एक बार रन यहाँ पे ओपन नहीं, कर लो। कंसोल ओपन कर लो मेरी। अच्छा ठीक है। ये ठीक है चलो स्विच इस पे स्विच ही ऑन कर कर लो। लो ये स्क्रीन पे। कोई बात नहीं, चलो वो कर दो, एक बार रिक्वेस्ट भेजो, एक बार फिर से जाके देख लेंगे वापस। इस ठीक है, अब रिक्वेस्ट कंसोल भेजी, दिखाओ। कंसोल में कंसोल ये आ गई में यहाँ पे। ये 400 एरर आ गई। गेट यूजर स्लैश लॉगिन ये कहाँ से कंसोल में प्रिंट होके आ रहा है? हमारा चीज तो है नहीं ये। ये मतलब रिक्वेस्ट मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है ना जो सर्वर, वो आ रहा है वहां पर। जैसे अगर गेट पोस्ट की या गेट, जैसे गेट की रिक्वेस्ट देते हैं हम इस पर डायरेक्ट, तो वो गेट डाटा दिखाता है सारा। जैसे ये गेट का डेटा है, तो यहाँ पे ये जैसे ये रिक्वेस्ट आ गई ना 200 सक्सेसफुल जो है। ये कंसोल लॉग कहीं पे किया होगा तुमने ना? कहाँ पे किया ये नहीं, कंसोल में? ये रिस्पॉन्स दे रहा है ना ये शायद इसमें होगा। तुमने कहीं लिखा होगा वो। इसमें मतलब ये रिस्पॉन्स देता है, बस जो रिस्पॉन्स है ना वो करवा रखा है। जो अगर एरर ठीक है तो मतलब एरर शो करेगा, नहीं तो जो रिस्पॉन्स है वो आएगा। ठीक है। तो एक बार फिर से उसी राउटर वाली फाइल में जाओ। हाँ यहाँ पे गेट यूजर्स स्लैश राउट है, उसमें तुम गेट यूजर्स को रिटर्न कर रहे हो और वो काम कर रहा है। हाँ, हाँ बस यहाँ पे 400 तुम आ रहा है। लॉगिन पे गेट गेट रिक्वेस्ट कर रहे हो।
लॉगिन पे गेट ही करेंगे ना, एक पोस्ट मिनट, थोड़ी डेटा थोड़ी जा रहा है पोस्टिंग के लिए। लॉगिन को कट करो यहाँ पे, यहाँ से रिमूव करो। नहीं नहीं नहीं, पूरा पूरी लाइन वो नहीं रिमूव करना है, पूरी लाइन रिमूव पूरी करके। लाइन हाँ, लाइन नंबर 18 पे रखो, लाइन नंबर ये पूरी रिमूव करके 18 पे। यहाँ पे 28 नहीं, 18 पे। हम्म। भाई ये लॉगिन का कैसे गेट रूट होगा? लॉगिन का गेट ही होता है, तुम डेटा पोस्ट थोड़ी कर रहे हो वहां पे, बस रिक्वेस्ट डाल रहे हो यूजर कि ईमेल अवेलेबल है या नहीं, या पासवर्ड अवेलेबल नहीं, तो गेट रिक्वेस्ट ही तो डालोगे वहां पे। पोस्ट, अच्छा, चलो अभी कोई तक तो बात नहीं, पोस्ट कुछ भी रिक्वेस्ट किया मैं। नहीं, पोस्ट ही करते हैं क्योंकि डेटा भी भेजना होता है ना। डेटा क्वेरी पैराम से भी भेज सकते हैं, हाँ लेकिन पोस्ट ही करते हैं। कोई बात नहीं, वो हाँ उसकी मैं दिक्कत नहीं है, वो काम करेगा, चाहे गेट रखो चाहे पोस्ट रखो। अब चलो एक बार रिक्वेस्ट भेजो। ठीक है, काम कर गया। देखो वहां पे कंसोल में चल के देखो, नेम और ईमेल पहुंच गया होगा। अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड आ रहा है ना, तो उसको पार्स कर रहे हो क्वेरी स्ट्रिंग को। यहाँ पे डायरेक्टली 1 मिनट दिखाओ तुम वहां पे, रिक- अ, वो फंक्शन दिखाओ। ठीक है, तो ये रहा। रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में नहीं आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पे। क्वेरीज बॉडी, या देखो कहाँ पे तुम भेज रहे हो वो। रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में एक बार एक रिक्वेस्ट को बार ही कंसोल लॉक कर लो ना, देख लेंगे कहाँ पे है। रिक्वेस्ट को ही कंसोल लॉक कर लो पूरा। यहाँ पे एक बार कंसोल लॉक के बाद में लिखो res डॉट सेंड, res डॉट जेसॉन लिख दो, res डॉट जेसॉन। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेज दो, उसमें नेम अपना नाम डाल के ऐसे भेज दो बस। हाँ, बस यही मैसेज हेलो कर दो बस, ठीक है, तो ताकि वो लटक के घूमता ना रहे पूरे टाइम। ठीक है, देखो काम कर रहा है, अब करवा लोगे। देखो यहाँ पे अब तुम बॉडी देख लेना कहाँ पे आ रहा है, बॉडी के अंदर है वो, बॉडी के अंदर ईमेल एंड पासवर्ड। हाँ, तो बॉडी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में नहीं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, वहां से डिस्ट्रक्चर करना था। इशू इशू क्या था? इशू हमारा ये क्यों हाँ नहीं चल रहा था? हाँ, समझ के बताओ क्या वही। था, तुम लोग समझ के बताओ। अरे वो वही था ना, मैं डायरेक्ट ना बॉडी को नहीं एक्सेस कर रहा था, वो नहीं रिक्वेस्ट नहीं, डॉट पैरम्स को एक्सेस कर। नहीं वो सब इशू नहीं है। एक बार मैं वो ये इशू, करके देखता हूँ, ठीक है करके देखो। होता है या नहीं। कैन नॉट डी स्ट्रक्चर ईमेल आईडी। बॉडी के बाद हेलो सर। परम्स जो लगा है पैराम्स वो नहीं हटा दो। चाहिए, पैराम्स नहीं चाहिए वहां पे, बॉडी बस। हेलो सर। हाँ हाँ जैसे फ्रंट एंड से हम डेटा ले रहे हैं यहाँ पे, तो पोस्ट रिक्वेस्ट ही करेंगे ना बैकएंड को? हाँ, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। यूजर आईडी हाँ। फर्स्ट, हाँ हो गया अब। हाँ, तो बताओ क्या दिक्कत थी। ये इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ये थी जो यहाँ पे। वो ना पैरम्स कर रखा था ना मैंने, वो बॉडी नहीं, नहीं कर रखा था। हाँ सौरभ तुम बताओ क्या दिक्कत थी। ये वो पैराम्स की दिक्कत तो वो दूसरी दो दो दिक्कत थी। परम्स ठीक, की नहीं थी ये, मुझे लग रहा है जहाँ पे आपने ठीक कराया था ना वो राउट्स पे, लाइन नंबर 18 जो कल मैंने वहां पे कराया था वो। आई थिंक। हाँ वहाँ पे जो ऑर्डर चेंज करवाया मैंने ना, ये हाँ हाँ, देखो ये लॉगिन को तुमने, लॉगिन को तुमने मैंने यहाँ पे उसको लाइन नंबर, हाँ लाइन नंबर 24 पे लिखा था तुमने, 24 या 28 पे कहीं तो लिखा था। ऐसा कर दोगे तो नहीं काम करेगा। ये पर यहाँ क्यों पे बैक रिक्वेस्ट। क्यों हाँ, उसको करना चाहिए था? नहीं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम्हारे पास
गेट रिक्वेस्ट कितनी है इस पेज में देखो। अभी लाइन नंबर 24 पे ही रख दो, वो कोड 24 पे ही रख दो लाइन नंबर। देखो यहाँ पे 3 गेट रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। हाँ एक है जो एकदम रूट राउट पे आएगी या स्लैश यूजर्स पे आएगी, वो है। हाँ और फिर एक डायनेमिक राउट है, ये जो कॉलन आईडी लिखा है ना, वो हाँ डायनेमिक राउट है। तो हाँ वो लॉगिन को पहले ही कैच कर ले रहा है। मतलब अगर तुम स्लैश लॉगिन पे जा रहे हो जब, तो हाँ। उसको पहले ये वाला मिल जा रहा है लाइन नंबर 20 पे। तो वो लॉगिन को समझता है कि आईडी है वो, ठीक है। अच्छा अच्छा, समझ गए ना? जो समझ गया समझ। हाँ, लॉगिन को समझ रहा है आईडी तुम पास कर रहे हो, और वो आईडी वाला कॉल कर दे रहा है, वहीं से ही रुक जा रहा है। तो तो इसीलिए जब लॉगिन आउट पे जा ही नहीं रहा ना, हाँ ये लॉग जो है ये दिखा रहा है, ये रहा। हाँ, लॉगिन राउट तक वो जा ही नहीं रहा है, वही वो एरर है। तो उसको तुम ऊपर रखो। जब भी डायनेमिक राउट क्रिएट करते हैं तो उससे जो पॉसिबल कॉन्फ्लिक्टिंग राउट होते हैं उनको ऊपर रखते हैं। तो जैसे इस केस में मैंने इसको ऊपर रखवा दिया, बस। ठीक है, तो एक तो ये दिक्कत थी, और दूसरा वो जो क्वेरी डॉट पैराम्स जो करना था वो वाली, जिसकी वजह से तुम्हें वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो ये मेन दिक्कत थी, ठीक है। और वहां पे इसमें ये तो चल जाएगा ना शायद, ये वाला तो, हाँ, ये तो चलेंगे ठीक नहीं है, अब चलेंगे। तुम देख लेना कि यहाँ से भी तुम्हें समझ आ गया ना कि यहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। डायनेमिक राउट इंटरसेप्ट कर सकते हैं नॉर्मल राउट्स को, तो हमेशा जो हार्ड कोडेड राउट्स होते हैं उनको ऊपर रखते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ओके, थैंक यू भैया। चलो ठीक है। और प्रेम, तुम बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा? अच्छा अच्छा, सब बढ़िया? सब बढ़िया है सर। क्या पढ़ रहे हो? पढ़ तो नहीं रहा, रेट पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, सीखना पड़ रहा हूँ कोई। अच्छा, और कर कर कुछ ज्यादा आ रहा है, एक थोड़ा मिनट सर। माइक पास करना। हाँ एक मिनट। हाँ, ठीक है सर। हाँ, पहले से ठीक है। हाँ तो पढ़ नहीं रहे हो लेकिन कुछ बना रहे हो, हाँ ऐसा? हाँ वो भी पढ़ना ही हुआ। हाँ, सही है सर। ठीक सर है। मैं ये बोल रहा था हाँ, कि मतलब जितना जितना प्रैक्टिस मैंने रिएक्ट में की है ना, अपनी जेएस में नहीं की। तो करो, और गड़बड़ी कर रहे हो और तुम। है ना, अब वो अभी आपने उनको बताया ना अभी एक भाई को, तो हम्म, उस हिसाब से लगा कि हाँ शायद मैं गलत जा रहा हूँ। हाँ मतलब मुझे लगता है कि रिएक्ट में बनाना कुछ ज्यादा सिंपल होता है, स्टेट का यूज करके आसान होता है चीजों को बनाना, हाँ जबकि हाँ जेएस में ऐसा नहीं होता। हाँ, जेएस में तुम्हें नॉर्मल वेरिएबल्स बनाओगे, वो अपडेट ही नहीं होगा। उसको हाँ अपडेट करोगे, अपडेट ही नहीं होगा। उसको तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये इसको अपडेट करना है। तुम्हें इनर टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिस करो। जो मैं प्रोजेक्ट्स बनवा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के, हाँ उसको जैसे उनको बताया मैंने ना कि वीडियो मत देखो, बस वीडियो में देख लो क्या हाँ बनाने हाँ जा रहे हैं, वीडियो रोक दो, खुद से बनाओ पूरा जाके, खुद से। हाँ हाँ, खुद से बनाने की कोशिश करो, उसको दो, मतलब टाइम दो, आधा दिन, एक दिन, जितना दिन दे पाओ एक प्रोजेक्ट को दो। फिर अगले दिन, या अगर तुम्हें लगता है तुमने इनफ ट्राई कर लिया, इनफ बना लिया है, और तुमसे अगर नहीं बन रहा है तो भी, और अगर बन रहा है, बन गया है तब भी, वो वीडियो देखना है। उससे तुम्हें पता चलेगा कि मेरी क्या अप्रोच है और तुमने क्या अप्रोच लगाई है। ठीक है, तो हर एक प्रोजेक्ट के साथ, चाहे सीएसएस का हो, चाहे जावास्क्रिप्ट का हो, चाहे रिएक्ट का हो, सब चीज को ऐसे ही करना है। खुद से पहले ट्राई करना है, खुद से बनाने की कोशिश करनी है, और उसके बाद में फिर वीडियो देखना है। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चलेगा ना। तुम अगर वीडियो हाँ देख के करोगे, तुम्हारा दिमाग तो बंद ही रहेगा, तुम्हें तो बस सब सोल्यूशन मिलता जाएगा, सोचने को मजबूर ही नहीं होगे तुम। तो ठीक है, हाँ सर। सर प्रोजेक्ट्स मतलब बनाओ और रिएक्ट भी पढ़ते रहो, साथ साथ में दोनों पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट अच्छी कर लो, उसमें हर एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से आने चाहिए जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, हाँ जैसे कि लेट और वार, ये दोनों चीजें पढ़ी पढ़ी हैं तुमने ना?
अभी याद है क्या डिफरेंस होता है? हाँ सर। बताओ। सर जब अपन वेयर से कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है अगेन, और रीअसाइन भी किया जा सकता है अगेन, और उसको ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, जबकि लेट में ऐसा नहीं होता। लेट को एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसको दोबारा से वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट कीवर्ड का यूज करके, और उसको हाँ, ग्लोबली एक्सेस भी नहीं कर सकते। वो सो ग्लोबली नहीं कर सकते तो कहाँ पे कर सकते हैं एक्सेस? यदि एक फंक्शन के अंदर अपन बना रहे हैं तो उसी के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, और var को अगर एक फंक्शन के अंदर रख रहे हैं तो उसको फंक्शन के तो बाहर उसको यूज कर यूज कर सकते हैं। एकदम गलत। सही में? नहीं कर सकते, हाँ, गलत, नहीं कर सकते। काफी गलत है। दोनों ही गलत है। मतलब जो पहला वाला एक्सप्लेनेशन था कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, वो वाला सही है। हाँ ये वाला चीज जो तुमने बताया कि फंक्शन के बाहर अगर var को एक्सेस कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। var को फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, और लेट को? लेट को भी नहीं एक्सेस कर सकते फंक्शन के बाहर। तो लेट को तो मैंने बोला कि फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, लेट का तो बोला ही नहीं। हाँ, तो उसको बोला है, लेकिन वो और भी है ना, तो var को भी नहीं कर सकते एक्सेस। अच्छा, तो अब क्या वार डिफरेंस वार रहेगा? वार को कभी यूज नहीं किया ना सर, सो तो यूज करो, देखो क्या डिफरेंस है। हाँ सर। ठीक है, फिर से फाइंड आउट करो। तो अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो var होता है, अगर तुमने एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है var को, उस फंक्शन के बाहर कभी नहीं एक्सेस कर सकते हो var को, ना तो var को, ना तो let को, ना तो const को, किसी को ना भी। कॉन्स्ट। हाँ, तीनों तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं let const var, फंक्शन के बाहर कोई भी नहीं एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही रहेंगे अगर फंक्शन के अंदर किया है। लेकिन फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन भी यूज करते हैं, फॉर लूप भी यूज करते हैं, है ना। तो मान लो किसी इफ कंडीशन के अंदर तुमने लेट का यूज किया है, लेट a इज इक्वल टू 5 और var b इज इक्वल टू 6, ऐसा किया है अगर, तो उस इफ जो ब्लॉक होता है, ऐसे करली ब्रैकेट लिख के एक इफ के आगे लगाते हैं ना करली ब्रैकेट, तो उस करली ब्रैकेट को बोलते हैं ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ ए कोड। मतलब हाँ, एक कोड का ब्लॉक है, वो बोलते हैं उसको करली ब्रैकेट को। तो उस लेट कीवर्ड को, जो लेट वाला वेरिएबल है, उसको केवल उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हो जो इफ का ब्लॉक है। ठीक है, और जो var है वो पूरे फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इवन इफ के अंदर अगर तुमने कर दिया तो एल्स में भी नहीं एक्सेस कर सकते हो लेट को। अच्छा, तो जो जो ये होता है var, वो एक फंक्शन स्कोप्ड होता है, और जो क्या मैंने बोला, var एक लेट फंक्शन लेट। स्कोप्ड होता है, और लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है। ठीक है, ठीक। तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, तुम उसको प्रैक्टिकली करके जाके देखना, कोड हाँ लिखना, सर। देखना एक्सेसिबल है कि नहीं है, स्कोप में कहाँ पे है। इसको मैंने समझाया है, लेट कॉन्स्ट और वार की एक वीडियो उसमें समझाया है, फिर आगे चल के स्कोप की वीडियो उसमें भी बताया मैंने। स्कोप वाली वीडियो में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, लग ठीक ही है, रहा है। अगर ऐसे ही जावास्क्रिप्ट आ रही है तो सही से सीखना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ सर, पहले जावास्क्रिप्ट में सर बहुत ही हाँ कम प्रैक्टिस की है, इवन हाँ कुछ ही नहीं की है मान लो, हाँ लेकिन रिएक्ट में कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रखो, हर एक कॉन्सेप्ट। इसमें से सबको लगता होगा कि फॉर लूप आता है सबको, किसको अब फॉर सभी लूप को नहीं आता है? ठीक है, लेकिन फॉर लूप में, अच्छा सौरभ सिंह को नहीं आता है। क्या नहीं आता है तुम्हें? फॉर लूप लिखो और 1 से लेके 3 तक प्रिंट करवाओ। सौरभ, चलो स्क्रीन शेयर करो, बहुत मस्त चीज बताने जा रहा हूँ। कौन मैं? सौरभ से बोल रहा हूँ, सौरभ से। Okay, हाँ, just
1 से लेके 3 तक प्रिंट करवाना। अच्छा। अब इससे एक बोल रहे हैं कि यूज करना आता है, बना कैसे सकते हैं। मतलब फॉर लूप बनाते नहीं है, फॉर लूप वो जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट एम्बेडेड होता है, उसको समझते हैं। बनाने को तो मुझे भी नहीं पता कैसे बना सकता हूँ। सी प्लस प्लस में भी होता है लूप, वो तो कंपाइलर का काम होगा, कुछ करता होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे काम नहीं चलेगा, ये रेपलेट ये सब जस्ट फेडल ये सब फालतू है, बंद करो। वीएस कोड खोलो, उसमें एक एचटीएमएल फाइल रखो और उस फाइल को अपने एज में ओपन करो, जो कि तुम्हें नहीं पसंद है करना। या यहाँ ठीक पे है, हाँ ठीक। ठीक है, एक फॉर लूप लगाओ और एक एक से लेके 3 तक प्रिंट करना है। 3 तक। हम्म, log I। ठीक है, चलो एक बार कंसोल में कौन कौन बताएगा इसका आउटपुट क्या होगा। 0 to 4। अरे 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, 1 से 4। 1 2 एक 3। से 1 से 3 तक आएगा, क्योंकि लेस देन है ना वो। 1 से 3 तक हाँ। आएगा। ठीक है, एक बार दिखा दो कंसोल सबको। ठीक है, अब फिर से VS कोड में आ जाओ। ये तो ठीक था, ये तो जैसा सोचा था वैसे ही है। अभी कंसोल साइड में मत ओपन करना, ये तुरंत वो दिख जाएगा ना, मत ओपन नहीं, करो इसको। रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, या तब ठीक है, तब ठीक है। तो अभी कंसोल लॉग को एक सेट टाइम मोड के अंदर रख दो। ओके, क्लोजर्स सेट टाइम आउट। हाँ ठीक है, टाइम मान लो 500 मिलीसेकंड डाल दो या 1000 डाल दो, जितना भी ठीक है। हाँ, अब इसका आंसर कोई बताएगा क्या होगा अगर रिफ्रेश करेंगे तो। तीन बार वन प्रिंट होके आ जाएगा। मेरे हिसाब से हाँ सौरभ थोड़ा तुम समय बताओ। दो सही ना। ठीक है, टाइम ले लो, सोच के बताओ, रिफ्रेश हाँ, मत करना। तो बता रहा है। तुम बताओ सौरभ, तुम बताओ। मेरे हिसाब से 4 4 4 आएगा। अच्छा एक ठीक है, मिनट। और स्वप्निल तुम्हारा भी नहीं नहीं गलत है। नहीं, 1 2 3 4 ही हाँ, आएगा। वो हाँ 500 मतलब, मिलीसेकंड के बाद आएगा। अच्छा 1 2 3 4 आएगा। हाँ, ठीक वन है, टू स्वप्निल थ्री तुम बताओ। 1 2 3 आएगा। हाँ, आई थिंक कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं प्रिंट होगा ये भी बताओ। हाँ, सेट टाइम आउट है तो फॉर लूप खत्म हो जाएगा उस टाइम तक, ऐसा लग रहा है कुछ। अच्छा ठीक है, इसको समझना चाहिए सबको। और सौरभ का आंसर सही है जो बाद में बताया उन्होंने। एक बार रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो। हाँ, या 1 2। एकदम से अलग मत कर दो इसको, उसी विंडो में ही रखो, एकदम अलग मत कर दो। और ताकि रिफ्रेश वाला बटन रहे ऊपर ना। नहीं तो यहाँ पे कंट्रोल आर भी कर सकते हो, कंट्रोल आर कर दो यहाँ पे, नीचे की तरफ वाला कर दो ऐसे, और फिर ओके। विंडो को साइड में रख सकते हो। इस विंडो को छोटा करके रख दो, हाँ अब ठीक है। हाँ, और इसको बड़ा कर दो, हाँ। अब रिफ्रेश करो एक बार, देखो कैसे आ रहा है आउटपुट। तो ये देखो, और ये जो 500 मिलीसेकंड है उसको बढ़ा के 2000 कर दो। ठीक है, देखो इस तरह से आउटपुट आ रहा है, 1 2 3। ठीक है, मतलब ये 1 2 3 इकट्ठा ही आ जा रहा है 2 सेकंड के बाद में। तो ये स्वप्निल तुम भी समझना कैसे आ रहा है। और हाँ, अभी इसमें चेंज करना है, लेट को चेंज करके कर दो बार। अब बताओ क्या आंसर रहेगा, सब लोग बताओ, मतलब कौन बताएगा। मैं हाँ बताओ। अब 4 4 4 आएगा। ठीक है, सही है, रिफ्रेश करो एक बार।
ठीक ये है। 3 बार हाँ आया है। हाँ, तो अब ये ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो लेट के केस में वैसा क्यों आ रहा है? ओके, तो ये होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो होस्टिंग वेर का? जो होता है, हाँ, ठीक है। वेर जो होता है हमारा वो होता है फंक्शन स्कोप्ड। ओके, हम्म होस्टिंग नहीं, आई थिंक स्कोप्ड, स्कोपिंग, आई एम सॉरी, हम्म स्कोपिंग। ठीक। तो जो वैर होता है हमारा वो होता है फंक्शन स्कोप। तो वो फंक्शन के अंदर जब तक हम उसको फंक्शन के बाहर यूज नहीं करेंगे तो वो चेंज नहीं होता, उसकी मेमोरी सेम ही रहती है। इस हम्म पे ये सेट टाइम आउट ना, ये चला जाएगा हमारा वेब एपीआई पे, वहां से फिर अपनी क्या बोलते हैं उसको, कॉल बैक क्यू पे। तो वो वहां पे जब तक वो देखेगा कि जब तक ये सिंक्रोनस टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक वो वहां पे बैठेगा। हम्म एंड जब जब ये पूरे सिंक्रोनस टास्क पूरा हो जाएगा, मतलब ये लूप पूरा चल जाएगा और आई की हम्म वैल्यू 4 हो जाएगी, तब ये हम्म इसको मिलेगा टाइम। तो ये हमारा जाएगा कॉल स्टैक पे, और तब हम्म ये दिखेगा कि आई क्या रिफरेंस कर रहा है। तो आई रिफरेंस करेगा उस टाइम पे 4, तो ये 444 प्रिंट कर देगा हम्म। 2000 मिली सेकेंड के बाद। ठीक है, ये समझ आ गया मुझे। अब वो लेट उसको चेंज करके कर दो, और उसको, हाँ, एक बार बताओ इसका एक्सप्लेनेशन, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ओके, हम्म तो ये लेट जो होता है ना, लेट का बाइंडिंग होता है हमेशा ब्लॉक स्कोप पे। हम्म तो ब्लॉक स्कोप पे अगर हम लेट को चेंज करेंगे तो इसका न्यू मेमोरी क्रिएट होता है। ठीक है, सही बात है। यानी कि अगर एंड 3 बार सेम, लूप चला है तो 3 बार अलग अलग आई क्रिएट होगा। हाँ। ठीक है। एंड इस पे एक एक वेरिएशन और बनता है कि हमें वेर से ही कराना पड़ता है, बट हमें 1 2 3 चाहिए। हाँ, तो वो ठीक है, वो बाद में कर लेंगे, वो तो फंक्शन का यूज करना पड़ेगा फिर। ठीक हाँ है। हाँ, वो अभी अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी वो बताओ, ओके, लेट वाला एक्सप्लेनेशन, मतलब तुमने बताया कि 4 अलग अलग, ये मुझे समझ आ गया कि 4 अलग अलग, जब लेट यूज करोगे तो 4 अलग अलग आई बनेगा या 3 अलग अलग आई बनेगा। इनफैक्ट 4 अलग अलग आई बनेगा, जिसमें से 3 यूज हो जाएगा और चौथा वैसे ही बाहर रह जाएगा, क्योंकि चौथी बार में हाँ, वो लूप के अंदर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम्म, 3 अलग अलग आई बना, और तो अलग अलग आई बन गया, और फिर उसके बाद में ये सेट टाइम आउट को तीनों अलग अलग कैसे याद रहता है? किस टेक्निक से याद रहता है उसको? कैसे पता है ये उसको? ओके। तो ये 3 कॉलबैक्स रजिस्टर करेगा आई के साथ। हाँ हाँ तो उसको जब कॉलबैक को कॉल करेगा तब ये आई की वैल्यू देखेगा कि इस कॉलबैक के साथ क्या आई की वैल्यू एसोसिएटेड थी। हाँ, तो सही बात है, एकदम सही बात है। एक काम करो, ये फंक्शन जो है कॉल बैक, इसको बाहर बाहर एक डिफाइन कर दो, कॉल बैक फंक्शन। हाँ, इसको कट कर लो, और इसका नाम कट करके कुछ और नाम दे दो। बाहर नहीं, मतलब इस उतना बाहर नहीं, लूप के अंदर ही। हम्म, हम्म, ठीक है, यहीं पे मान लो, हाँ, ABC। ठीक है, और इसको टेस्ट यहाँ पे पास कर दो। तो अभी भी वही सेम चीज है, बस इसको एनोनिमस की जगह पे एक नाम दे दिया है ना? हम्म, और कोई अंतर है नहीं। तो एक काम कर सकते हो तुम, लाइन नंबर 15 पे, मतलब लाइन नंबर 14 और 15 के बीच में, वहां पे console.dir करो, console.dir टेस्ट। ठीक है, अच्छा, टेस्ट करो। हाँ, अब एक बार रिफ्रेश करो पेज को। DIR क्या होता है? console.log करना, एक बार console.log करना, लॉग करके रिफ्रेश करो, console.log। हम्म, ओके, यहाँ पे। हाँ, बस वही, अब रिफ्रेश करो तो फंक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा, बस। ठीक है, जैसे फंक्शन होता है। लेकिन जब console.dir किया तो वो एक फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। इनफैक्ट हर एक चीज जो कि ऑब्जेक्ट है बिहाइंड द सीन्स, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगी अगर console.dir करते हो, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज तुम देख सकोगे फिर। तो एक बार इसको console.dir करके रिफ्रेश करो, तो ये एक फंक्शन है जो कि एक तरह से ऑब्जेक्ट है। इसमें एक स्कोप्स दिख रहा है, स्कोप्स ओपन करना। हाँ, ये क्लोजर वाला स्कोप, हाँ। हाँ, और इसमें देखो, ये ब्लॉक ब्लॉक में आई है और आई इज इक्वल टू 1।
ठीक है, और ये हाँ केवल एक ही बार, ये देखो ये 3 बार प्रिंट हुआ है, तो उसी जगह पे वो रिप्लेस होके हमें दिख रहा है। ठीक है, ये मतलब 3 बार, देखो ये जो फंक्शन टेस्ट जो कंसोल लॉग हुआ है, ये 3 बार हुआ है, देखो, हम्म है ना। तो ये उसी चीज को ओवरराइट कर रहा है। एक काम करो, एक एरे एरे बनाओ, एक कॉन्स्ट करके एक एरे बनाना, बस। बाहर हाँ, हाँ, इधर ही बना लो एरे, um, एरे एम्प्टी एरे बना लो, और कॉन्सोल लॉक करने की जगह पे उस एरे के अंदर पुश कर दो इस टेस्ट फंक्शन को। यहाँ पे हाँ, एरे डॉट पुश, ये टेस्ट कर दो, और इस एरे को जब लूप कंप्लीट हो जाए उसके बाद में कॉन्सोल लॉक करो। ओके, यहाँ पे और के बाद हाँ, अब रिफ्रेश करना, तो ये 3 फंक्शंस दिख रहे हैं, क्योंकि 3 बार लूप रन हुआ है और एक एक करके ऐड हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले स्कोप में आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, पहले वाला जो फंक्शन है, जो पहले इटरेशन में आया था, वहां पे आई की हम्म वैल्यू 1 है। दूसरा वाला खोलो स्कोप। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, दिख रही है क्लियरली। ठीक है, तीसरे वाले में आई की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये दिखा ये चीज। हम्म तो ये वैर के साथ कर सकते हैं क्या? वैर जब करोगे तो 3 अलग अलग लोकेशन पे नहीं बनेगा, करके देख लो, वो एक ही रहेगा। एक बार रिफ्रेश करना, तीनों में सेम चीज रहेगा। कहाँ गया? स्कोप के अंदर तो नहीं दिख रहा। स्कोप के ये अंदर अभी वैर जब तुमने यूज किया है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, स्क्रिप्ट बंद करो। जब वैर यूज करते हो तो ग्लोबल, अभी ब्लॉक ब्लॉक लिख के आ रहा था ना, ब्लॉक स्कोप हम्म क्रिएट ही नहीं हुआ, ग्लोबल स्कोप में क्रिएट हुआ है। तो ग्लोबल स्कोप हम्म ओपन करो, जो ग्लोबल है, वहां पे तुम्हें आई मिलेगा कहीं, इसको ढूंढना, इधर ही नीचे जाओ, कहीं आई मिलेगा। अरे ऐसे नहीं मिल पाएगा, ऐसे ओ पे पहुंच गया यार, डिक्शनरी देखनी नहीं आती। ओ के पहले ये आई है। रहता है, ये देखो। हाँ, तो आई यहाँ पे 4 है, पहले वाले में ही 4 है, तो बाकी सब में 4 होगा ही। एक बार चाहो तो ढूंढ के देख सकते हो, लेकिन 4 ही रहेगा। ठीक है, ओके तो देख लो, और में भी देख लो, लास्ट वाले में भी देख लो। तो ये जब var यूज करते हैं तब एक ही वेरिएबल बनता है, एक ही आई बनता है, जो कि ग्लोबल में होता है, और इसी उसी को इंक्रीज करते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब लेट हम्म यूज करते हैं तो एक ब्लॉक स्कोप बनता है। एक बार फिर से उसको लेट कर दो। हमारी स्क्रीन रुक गई और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है मेरे साइड। अच्छा, ठीक है, उसको लेट कर दो, और ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है अलग से, इसको हटा दो, और जैसे पहले कॉल बैक था, एरो फंक्शन पास कर रहे थे ना, वैसे ही कर दो। हमने देख लिया कि क्यों, मतलब क्यों 3 अलग अलग वैल्यूज आ रही है ना, अभी दिख गई। अब डाउट नहीं होगा कि क्यों आ रही है। तो मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है सौरभ तुम्हें? हेलो सर, हाँ सपने, नेटवर्क का हाउ इशू है डू यू शायद। लर्न दीज काइंड ऑफ थिंग्स? डेफ टूल्स से ढूंढो, बस कोई पढ़ाया नहीं सर है ना, तो आपने कभी कोई अभी इतना पढ़ाएगा। इतना बताया ना सर, ऐसा लग रहा है कि हम काफी पीछे है, ऐसा लग रहा है मेरे को। मतलब पीछे है, मतलब कि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए ऐसा। हाँ, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, अभी अभी ये शुरू हुआ है, अभी अभी तुमने कहाँ देखा है इसमें। हाँ देखा है इसको। अभी फॉर हाँ, लूप ये का देख अभी के थोड़ा शुरुआत। अभी नर्वस इसमें हो गया मैं देख के। नहीं, नर्वस नहीं होना, नर्वस मत हो। देखो, और देखो कि तुम भी ऐसे कैसे सीख सकते हो। डेव टूल्स में ही तुम ढूंढ ढूंढ के सीख पाओगे।
ठीक है, और तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए, मतलब कोड के साथ बहुत ही प्ले अराउंड करना पड़ता है। यही एक 4 लाइन का, कितना ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाइन का कोड लिखा है उसमें, हाँ। वही 4 लाइन का कोड मैं एक हफ्ते तक समझता रह जाता हूँ कि ये कैसे चल रहा है। अच्छा। मतलब डाउट, पहले तो डाउट आना चाहिए, नहीं तो नॉर्मली देख के समझ ही आ जाता है कि ये तो सही चल रहा है और ऐसे ही चलना चाहिए। पहले तो डाउट हाँ आना सर। चाहिए। डाउट आने के लिए कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ आने चाहिए, जो और भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि स्कोप, स्कोप हो गया, वायर कैसे काम करता है, लेट हाँ। कैसे काम करता है, वो सही से पता होना चाहिए। जब वो पता होगा तभी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा। अभी जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा था, एक बार हाँ। तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, अगर सौरभ नहीं आता है तो, शायद उसका नेटवर्क का इशू हाँ है। सर। हाँ, उस उतना उतना कोड तो लिख ही सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है सर। अरे आ गए। आ गया। ठीक है हाँ फिर। सौरभ, अभी नेटवर्क तुम्हारा सही हुआ कि नहीं, पता नहीं, नेटवर्क तो नहीं सही हुआ होगा ना, तुम ही शेयर करो जब तक, या ठीक है। मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ। ठीक है सर, आप करो। मैं क्यों ऐसे ही बोल बोल के करवा रहा हूँ। ठीक हाँ। है ऐसा लग सर। रहा है सर कि अगर ये सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको तो आता नहीं है, तो क्या होगा हमारा? कौन पूछेगा इंटरव्यू में? इंटरव्यूअर। इंटरव्यू में हाँ। ये इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर तो पूछेंगे। सर और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा फिर तो। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही फंडामेंटल लेवल का चीज है। ये कोई बहुत ही हाई फाई नहीं है, कोई प्रोमिसेस, कॉल बैक, एसिंग, कवेट, ये सब कुछ नहीं है। फॉर लूप है, सेट टाइम हाँ आउट सर, है लेकिन ना? सर प्रैक्टिकल ऐसे करते नहीं ना, तो सर पता नहीं रहती चीजें। हाँ, तो वो करके देखो तुम खुद से, ठीक है? तो हाँ। ये करके देखना पड़ेगा, और ये इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है। लेकिन अभी इसको मैं एक और हाँ सर। लेवल आगे लेके जाऊंगा, जो कि किसी इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जाता है। अभी मतलब हाँ इंटरव्यू में सर। वो ये नहीं बोलते हैं कि मुझे दिखाओ कि, जैसे मैंने एरे में डाल के दिखाया 3 अलग अलग, तो वैसे हाँ अब तुम्हें पता चल गया तो अभी दिखा सकते हो तुम, लेकिन वो इंटरव्यूअर को भी नहीं पता होगा कि ऐसे एरे में दिखता है। सर, मतलब आप ऐसे खुद करके। से learn करते हो क्या ये चीजें, ये जो आप बता रहे हो, या फिर हाँ, कहीं से? ये वाला मेरा खुद से ही है, ये खुद से ही मैंने किया है ये चीज। अच्छा, और सर आप किसी, कौन से रिसोर्सेज से पढ़े हो इसके पहले वगैरह? अब यार रिसोर्सेस कोई एक रिसोर्स नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। कोई एक कोर्स नहीं है, बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। और अच्छा। थोड़ा बहुत इंटरव्यू देने के बाद भी, इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो पहली बार जब मुझसे भी पूछा गया होगा ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने भी नहीं बता हाँ। पाया, मतलब मैं भी नहीं बता पाया था, मुझे भी डाउटफुल था। तो फिर अभी जब सर, एक, हाँ अभी अभी सर हम जैसे फ्रेशर है, तो ये सर ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि सर हमको पता नहीं रहते, जैसे ये चीज हम अ, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर कभी यूज नहीं करते सर। तो हाँ। ये चीज अगर कोई पूछेगा तो इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल रहता है हमारे लिए। लेकिन जो चीज हम यूज करते हैं ना, जैसे हम्म, कि रिक्वेस्ट भेजना सर्वर पे, या फिर कुछ एपीआई वगैरह बनाना, जो चीज हमने हम्म, पहले किए रहते, उसका हम्म, अगर क्वेश्चन करते हैं तो सर हम दे देते हैं आंसर सही से। हम्म। हाँ, हाँ। अब इस लेवल का क्वेश्चन फ्रेशर से उतना नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। अगर थोड़ा हाँ सर। तुम कुछ एक्सपीरियंस रोल के लिए जाओगे तभी पूछेंगे हाँ। एकदम इस तरह से क्वेश्चन, अभी लेकिन सर। हाँ, लेकिन पूछ सकते हैं, हाँ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम से नहीं पूछेंगे। हाँ, तुम बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, अभी सर, अभी हम जैसे हमको ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो जब हम थोड़ा हमारे थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 1-1.5 साल का या फिर 2 साल का, तब तक तो सर ये चीजें अपने आप ही पता चल जाएगी मेरे ख्याल अपने से। आप, अपने आप नहीं पता चलेगी भाई, तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। हाँ सर, अपने आप मतलब हम प्रैक्टिस तो करेंगे ना सर, उतने टाइम में थोड़ा बहुत तो। हाँ, तो ढूंढोगे, प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। हाँ सर। हम्म, तो तुम एक्सप्लोर करते रहो ब्राउजर में, डेव टूल्स में एक्सप्लोर करते रहो, कुछ भी नया दिख जाए उसको देखो क्या है। ठीक है? हाँ। सेट टाइम यस सर। आउट, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। आई, यहाँ पे टाइमिंग डाल देते हैं 2000 मिली सेकेंड, 1000 ही डाल देते हैं।
आई, ये क्या हो गया यहाँ पे, आई इज इक्वल टू मैंने कर दिया, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ रहा है 1 सेकंड के बाद, और यस सर। ये 1 2 3 अलग अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने देखा कि ये जो फंक्शन है ये 3 बार क्रिएट होगा, और हमने इसको एरे में पुश करके देखा कि जब 3 बार अलग अलग क्रिएट होगा तो उसमें जो ब्लॉक स्कोप है वो भी 3 अलग अलग बार रहेगा और उससे अटैच रहेगा फंक्शन से, तो अपने स्कोप से उठा के वो ले यस। लेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी क्वेश्चन ये था, अभी सौरभ चला गया एकदम से, उसका नेटवर्क ही चला गया। एक मिनट। हाँ, हाँ मेरा भी कभी कभी हाँ सर नेट ही नहीं चलता, पता नहीं हाँ, क्या होता है, हो जाता है तो तो। इसको मैं पूरा नहीं अभी एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक ना यूज करूं, बिना ब्लॉक के भी मैं फॉर लूप हाँ यूज कर सकता हूँ, ये पता है तुम्हें? वो करली ब्रैकेट बिना लगाए। हाँ। नहीं, लेकिन मेरे को लगता था कि ऐसे चल सकता है, अभी ट्राई नहीं हाँ किया मैं। हाँ, अगर केवल एक स्टेटमेंट रहेगा तो कर सकते हैं, और ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है, एक हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, भले ही 3 लाइन में दिख रहा और है। सर हाँ ये चीज सर हम इफ में भी कर सकते हैं ना? हाँ, इफ इफ में में भी अगर कर कंडीशन सकते हैं, और लिखनी इफ भी में हो। तो बहुत ही कॉमन है करना ऐसे। अगर मल्टीपल लाइंस हाँ। लिखनी है तब तो वो चाहिए हम्म, करली ब्रैकेट। अगर केवल एक ही लाइन लिखनी हाँ है, सर। भले ही यहाँ पे 3 लाइन हम्म, दिख रहा है लेकिन ये एक ही लाइन माना जाएगा, क्योंकि एक ही सेट टाइम आउट है, उसी को हम कॉल कर रहे हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर एक ही स्टेटमेंट है तो हम बिना करली ब्रैकेट के यूज हाँ। कर सकते हैं। तो अभी हमने करली ब्रैकेट नहीं हाँ। यूज किया है, तो ब्लॉक स्कोप यस सर। बनेगा? बनेगा। ब्लॉक स्कोप तो मेरे ख्याल से नहीं बनेगा। तो अगर नहीं बनेगा तो एक ही वेरिएबल होगा, और फिर वही 1 2 3 4 ऐसे, मतलब 4 4 4 ही प्रिंट होके आएगा, है ना? हाँ। लेकिन देखो ये रिफ्रेश अगर मैं करता हूँ तो 1 2 3 बन रहा है, मतलब ब्लॉक स्कोप बन रहा है। कैसे पता करेंगे ब्लॉक स्कोप अलग अलग बन रहा है? कॉन्स्ट एक, यहाँ पे डिबगर ला सकते हैं, उससे भी पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कहीं भी मैंने वो करली ब्रैकेट नहीं यूज किया, यानी कि ब्लॉक नहीं यूज किया है ना? यस सर। यहाँ पे मैं हाँ। डिबगर अगर लगा दूं इधर, तो मैं रिफ्रेश करूं, तो ये देखो यहाँ पे भी वो एक एरे में देखने वाला तरीका था, ये है यहाँ पे डिबगर ला के देख सकते हैं। ये पहली बार कॉल हुआ है, यस। 1 सेकंड बाद पहली बार जो पहला वाला फंक्शन है वो कॉल हुआ है। यहाँ पे ब्लॉक स्कोप हाँ। दिख रहा है और आई की वैल्यू 1 है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये दूसरी बार दूसरा वाला फंक्शन है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है। ठीक है, हाँ। ये तीसरा वाला है, ये तीसरे में आई की वैल्यू 3 है, यानी कि ब्लॉक स्कोप तो क्रिएट हो रहा है ना? यस सर। जबकि यहाँ पे हमने हाँ। ब्लॉक यूज ही नहीं किया। अब बताओ ये क्यों? ऐसा हो सकता है कि जैसे इफ एल्स में भी जैसे सिंगल रहता है ना, तो उस टाइम पे अगर नहीं भी देंगे तो भी वो उसको ब्लॉक ही मानता है, मतलब उसके अंदर, ना उसके ना, साइड अंदर का जो मतलब। देखो इफ के साथ में अगर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन में चलो लिख देता हूँ। हाँ। देखो इफ ट्रू, यहाँ पे जो कंडीशन है हमेशा ही ट्रू रहेगी। ठीक है, तो हाँ। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 5। बस इतना ही कर दिया मैंने। ठीक है, हाँ। ये है। यस सर। अभी ये अगर मैं यहाँ पे एक डिबगर लगा दूं, डिबगर कैसे लगाएंगे? चलो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके ए कर देता हूँ, और एक बार मैं रिफ्रेश अगर करूँ तो यहाँ पे डिबगर इधर आके रुक गया। ठीक है, यस सर। यहाँ पे ये मतलब ऑटोमेटिकली लग गया, ऊपर लगा था वो खिसक के यहाँ पे आ गया। और ये देखो एक ब्लॉक स्कोप क्रिएट हो गया जिसके अंदर ए है, अभी अनडिफाइंड है। आगे अगर बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू चली जाएगी, 5 हो जाएगा ये। इतना ठीक है, हाँ। समझ आ गया? अगर हम कंसोल लॉग हाँ। ना भी करते तभी तो ए की वैल्यू रहती वहां पे, है ना? यस सर। एक अगर ही। हम कंसोल लॉग ना भी करें और रिफ्रेश करें इसको, तब भी यहाँ पे ब्लॉक स्कोप में ए की वैल्यू है। ठीक है, अब आगे बढ़ गया ब्लॉक यस। स्कोप से तो वो गैप हो गया ब्लॉक स्कोप ही पूरा, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू है। ठीक है, और ए की वैल्यू 5 इसमें आ भी जाएगी। अभी अनडिफाइंड है, ये पूरी लाइन रन हो जाएगी। हाँ। मैं अगर इसको अभी मतलब उतना कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ये पूरा बाहर ही चला जाएगा, तो उसमें ये हाँ। 5 वैल्यू चली गई होगी।
अब ये ब्लॉक के यस सर। अंदर लिखा है मैंने, इसीलिए ब्लॉक स्कोप में है। अगर मैं यस, इस ब्लॉक को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो गेस करो क्या होगा। तो भी वो रन करेगा ही। देखो ये VS कोड ही एरर दे रहा है। नहीं। लेट डिक्लेरेशंस अच्छा। कैन ओनली बी डिक्लेयर इनसाइड अ ब्लॉक। मतलब इस तरह से नहीं कर हाँ। सकते हैं यहाँ पे। अगर बाहर करना होता तो कर सकते थे, लेकिन इफ के केस में यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे ब्लॉक जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। VS कोड एरर दे रहा है, और VS कोड तो छोड़ो, हाँ। यहाँ पे कंसोल भी एरर दे रहा है। लेक्सिकल डिक्लेरेशन कैन नॉट अपीयर इन द सिंगल स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे हम सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये लेट को नहीं यूज कर सकते, इवन कॉन्स्ट को भी नहीं यूज कर सकते हैं। वार अगर यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। लेकिन देखो, सर, चलो ठीक है, उसमें अगर हम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर डायरेक्ट उसमें कंसोल करेंगे कुछ भी चीज है, अगर ये ट्रू हाँ होता है तो उस टाइम तो हाँ रन करेगा ना। हाँ, क्योंकि कॉन्सोल लॉग कुछ भी कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बस हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते वहाँ पे, लेट हम्म, और कॉन्स्ट। हाँ, लेट और कॉन्स्ट का यूज करके नहीं कर सकते हैं। यानी कि लेट मतलब इफ का यूज करते टाइम हम बिना ब्लॉक हाँ। बनाए एक वेरिएबल कॉन्स्ट या लेट का यूज करके नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फॉर के वेर तो केस हो में जाएगा हमने ना कर सर। लिया। हाँ वेर वेर हो जाएगा ना वहाँ पे। हाँ, वैर हो गया, और मैंने करके भी तो दिखाया। ये देखो, इसको अगर वैर कर देंगे हाँ। तो, अरे तो हाँ। कैपिटल हो गया। तो देखो यहाँ पे भी कोई हाँ सर। वार्निंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई वार्निंग नहीं है। हाँ। अगर हम ए को एक्सेस करते हैं यस। तो ये 5 आ भी रहा है। हाँ। ठीक है, तो वैर के केस में कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। यहाँ अब यहाँ पे देखो, इफ के केस में हम करली ब्रैकेट के बिना लेट यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट नहीं लगाया, फिर भी हम यहाँ पे लेट यूज कर रहे हैं। ये बताओ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको समझना, बताना तुम लोग। ये तुम्हारा है असाइनमेंट ऑफ द वीक। और सौरभ, अगर तुम बाद में वीडियो देखते हो तो तुम भी इसको एक्सप्लोर करना, समझना कि कैसे होता है। और बस, हो गया काफी। ठीक है, और अगर हाँ किसी सर। को कुछ बोलना है सर ये बताओ कि इतना थोड़ा मतलब ये नए नए चीजें को कहाँ से लाते हो, अब थोड़ा सा हमें भी कुछ बताओ। तो हम कहाँ से देखें, कहाँ से समझे। खुद 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 देखो, खुद ही करो। जैसे एप्लीकेशन बनाने के लिए टाइम दे रहे हो ना, वैसे ही कोड को समझने के हाँ। लिए टाइम दो। और मैंने जैसे इतना दिखाया अभी, अब इसी चीज को जाके हाँ। तुम देखो कि फॉर में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और हाँ। वो आंसर ढूंढने की कोशिश करो। मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, यस। लेकिन ढूंढने के प्रोसेस में तुम और कई दूसरी नई चीजें सीख लोगे। और नेक्स्ट संडे को बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है, नेक्स्ट संडे को इसको समझेंगे। ठीक। अभी सर, पहले सर लॉजिक बिल्ड सही से नहीं हो रहा था, अभी सर बिल्ड हो जाता है, मतलब कर लेते हैं काम। हम्म स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होती थी। हम्म। सही है, धीरे हाँ। धीरे 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 सब आ जाएगा। सब होता है, प्रैक्टिस करते रहो स्टार्टिंग में ऐसे। लगता था स्टार्टिंग में लगता था कि ये बिल्ड लॉजिक ही बिल्ड नहीं हो रहा, हम क्या कोडर बनेंगे। फिर आपकी वीडियोस देखे, फिर आपने हमें बताया कि होता रहता है, तो फिर थोड़ा मोटिवेशन मिला हमको। हम्म, फिर हम प्रैक्टिस करते गए और फिर अभी आता है, मतलब हाँ सोचना समझना आता है अभी उतना। हम्म, सही है। ऐसे ही ये वाला भी हो जाएगा। जो नई नई चीजें जो देख रहे हो, ये भी हाँ करोगे तो सर। ही आएगा। ढूंढोगे, कोड अभी समझोगे। सर जो अभी सर जो चीज जरूरी है सर कंपनी के अंदर, वो सर अब हम अभी कर रहे हैं, मतलब हाँ जितना हाँ जरूरी है वो प्रोजेक्ट वगैरह। फिर जब सर, जब हम हमारे पास थोड़ा ज्यादा टाइम रहेगा और कुछ नया सीखने को चाहिए हमको, तो उस टाइम हम ये चीजें एक्सप्लोर करेंगे सर, और उस टाइम हाँ हमको पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। सर प्रोफाइल देखो अभी मेरी, वो कौन वहाँ सी पे, प्रोफाइल? वो मेंबर्स में है ना, कितने लाइव है करके वहाँ पे दिखता है, चैट कहाँ पे? बॉक्सेस का साइड में। मेंबर्स मेंबर्स, हाँ, नीचे मेंबर्स? आए वहाँ पे, लेफ्ट अच्छा साइड, हाँ। अच्छा, ये वाला। हाँ। तो अच्छा, तुमने भी वो लगा दिया, एनिमेशन वाला? हाँ। हम्म, मैं बोला चलो ट्राई करके देखते हैं। हम्म। ये तो वो जिफ ही सीधा लगा दिया गूगल पे।
हाँ जी फील लगा दिया यहाँ पे। अच्छा। और अभी क्या है कि मेरा स्टक नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में मेरा प्रोफाइल दिखे, मतलब हम्म, कहीं पे भी अगर जहाँ पे गया फर्क नहीं करता, तो वहाँ पे एटलीस्ट हाँ फोटो हाँ दिखेगी मेरी। हाँ, ये सही है। मतलब जहाँ पे हाँ जीआईएफ नहीं काम करेगा वहाँ पे ये रहेगा। हाँ, जहाँ पे काम करेगी तो फिर थोड़े सेकंड बाद वो सर्कल आ जाएगा, मतलब रिएक्ट हम्म, वाला। हम्म। हाँ ठीक है, इस एनिमेशन को थोड़ा सा और स्मूथ कर सकते हो कुछ। जैसे भी झटके से तुम्हारी प्रोफाइल आ रही है, ऐसा हो कि वो रिएक्ट का लोगो ऐसे फेड आउट हो जाए, गायब हो जाए और तुम्हारी इमेज आ जाए। ऐसा देखो कहीं करेंगे बना सर पाओ अभी, तो। करेंगे सर अभी। हाँ, हम बात करते करते बना डाला है इसी में हम्म, टाइम पास में, हम्म, हाँ उसको सही है। करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो। हाँ सर। ठीक है, ठीक है मिलते हैं सर। नेक्स्ट संडे को। सर थोड़ा सा एक बार बताओ कि ये जैसे ड्यू टूल वगैरह और हमको पढ़ना है, तो हम्म, मैं क्या करूँ, मतलब क्या सर्च करूँ, बता दो। कुछ सर्च नहीं बेस्ट करना है, कुछ वीडियो। सर्च सर्च कोई वीडियो नहीं मिलेगी तुम्हें, कोई आर्टिकल भी नहीं मिलेगा तुम्हें, डेव टूल्स में अच्छा, ही मिलेगा तुम्हें। मैं पहले सिर्फ खुद से करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। टाइम लगेगा तभी तो समझ आएगा तुम्हें, तभी तो उस नॉलेज की वैल्यू वो भी रहेगी। है। टाइम बहुत लगता है इसे तो, समझते रह जाओगे हाँ सर। एक ही चीज को। ये फॉर और लूप सर, जो है यही और एक समझते रह जाओगे। हाँ। और एक इम्पोर्टेंट चीज सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, कि हम्म। आप सर टाइम कैसे निकालते हो, जैसे जॉब भी कर रहे हो, वीडियो भी बना रहे हो हमारे साथ, फिर संडे लाइव में भी आए हो, तो करते कैसे हो आप, मेरे को जानना है ये। अरे कुछ नहीं, सब हो जाता है। जो जो मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट तो है। नहीं है 24 घंटे में से ज्यादा टाइम मिलता है आपको। नहीं, सोता नहीं हूँ मैं, बढ़िया 7 घंटे 8 घंटे सोता भी नहीं हूँ। अच्छा, सर लेकिन पढ़ाई सच में वगैरह भी सही करते हो बताओ ना, क्या अभी? मतलब क्या चीज? कैसे पढ़ पढ़ाई भी। हाँ अभी। पढ़ाई पढ़ पढ़ते भी हो क्या? हाँ अभी मैं पढ़ता था काफी दिन से, अभी 2 3 दिन से फिर से मैंने शुरू किया पढ़ना। पढ़ भी रहा हूँ। जब नहीं पढ़ता था तो ऐसे ही वीडियोस यूट्यूब पे देखता था। सर, सच में सर आप कैसे कर लेते हो सर, क्योंकि जैसे जॉब भी कर रहे हो तो आपका मतलब कितना बस उधर चला जाता है, फिर आप पढ़ाई वगैरह कब करते हो और वीडियो कब बनाते हो आप, थोड़ा बताओ ना। अरे हो जाता है, मतलब जॉब का काम मतलब 4 5 घंटे में हो जाता है। बाकी टाइम में अपना अच्छा। काम कर लेते हैं। हाँ, पूरा। अच्छा, चार फिक्स पाँच आवर नहीं घंटे रहता सर? फिक्स आवर्स नहीं है, मतलब तुम्हें बस काम करके देना है जितने में तुम कर पाओ। तुम हम्म। अगर कर पाओ तो 1 मिनट में ही कर दो। फिर अच्छा, मतलब छुट्टी? टास्क मतलब भी दिया रहता है क्या सर, हाँ, टास्क के रोज हिसाब का? से रहता है। तुम कितने जल्दी उसको अच्छा। कर दो, फिर चाहो तो तुम दूसरा टास्क ले लो, नहीं तो वही अगर जल्दी कर दिया है तो। बाकी अपना पढ़ो लिखो आराम से काम करो, कोई उतना सर प्रेशर ऑफिस नहीं जाते है। हो अच्छा और मेरे WFH करते हो? ऑफिस जाते वर्क फ्रॉम होम है। हो? कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम कभी नहीं जाते? नहीं अभी, पहले मैं जाता था ऑफिस, अभी 2 महीने से वर्क फ्रॉम होम है दूसरी कंपनी में। अच्छा। तो जब हमें ऑफिस लगता जाता था था तब तो। सर हाँ, क्या लगता था? कि जैसे सुबह से जैसे टाइमिंग रहते हैं ना ऑफिस का, तो उस टाइम मतलब जैसे 9 या 10 बजे से स्टार्ट होके फिर 5 बजे तक कंटिन्यू रहता है ऑफिस में, तो उस टाइम का ही उस टाइम उसके तरीके का ही आपको करना पड़ता है, ऐसा लगता था हाँ मेरे को। हाँ, अभी 2 महीने पहले तक वैसे ही था सारा कुछ। सुबह तैयार होना था, ऑफिस अच्छा। जाना था। मतलब 9 बजे से तैयार हो जाओ, 10:30 10 बजे तक, 10 बजे हाँ। तक ऑफिस पहुंच जाओ। फिर ऑफिस से रात को 9 बजे तक आते थे, 8 9 बजे तक। अच्छा, अभी जब पूरा फिर भी पूरा सुबह यूट्यूब, से। पूरा जावास्क्रिप्ट, पूरा रिएक्ट, सब कुछ वैसे ही पढ़ाया है, वैसे ही कंप्लीट किया है। रोज ऑफिस जाता था, फिर भी हाँ सर, रोज फिर वीडियो बनाते फिर थे। आप टाइम कैसे निकालते थे वीडियो के लिए, मतलब सुबह उठ के दिन भर रिकॉर्ड कर उधर देते फिर। थे, जाने से 9 बजे से पहले रिकॉर्ड कर देते थे, पढ़ा देते थे। अच्छा, ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम बता देना थोड़ा सही से, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया आपको भी। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो। ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर। हाँ ठीक गुड नाइट एवरीवन। है, बाय सर। मिलते हैं नेक्स्ट गुड संडे नाइट को। सर, इट वाज ठीक है, नाइस कन्वर्सेशन विथ यू। सेम ईयर सेम ईयर। चलो, बाय बाय। बाय सर।